चलो आगे बढ़ते हैं। तो वी हैव ऑल्सो बच्चों कंप्लीटेड नाउ 4 चैप्टर्स। तो लाइक एक आदत आदत रखेंगे हम लोग, जो एक चैप्टर हो जाएगा तो नया चैप्टर चालू करने के पहले हम लोग क्यूमुलेटिव रिवीजन ऑफ द सेक्शंस कर लेंगे। देखो तुमको सेक्शन नंबर याद आ रहे जस्ट टू फॉलो अलोंग विद मी। सेक्शन 1 शॉर्ट रिलेक्शन कमेंसमेंट एप्लीकेशन, 2 definitions, 3 formation of company, 3A members several liable in certain cases, 4 MOA, 5 AOA, 6 act over at MOA AOA, 7 incorporation of company, 8 company with charitable objects, 9 effect of registration, 10 effect of MOA AOA, 10A commencement of business बराबर, 12 registered office, 13 alteration of MOA, 14 alteration of AOA, 15 alteration to be noted in every copy of MOA AOA, 16 rectification of name of the company, 17 copies of agreements MOA AOA to be given to members, 18 conversion of already registered companies, 19 subsidiary not to hold in holding company, 20 service of documents, 21 authentications of your deed documents proceedings, 22 execution of negotiation instruments, 24 powers of तुम्हारी है, 20 कौन सा किया अपन ने, 20 21 22 किया, 23 public offer and private placement, 24 powers of SEBI syllabus में है नहीं तुमको, 25 deemed prospectus, 26 matters to be stated in prospectus, 27 variation in terms contracts of prospectus, 28 offer for sale, 29 public offer in demat form, 30 advertisement of prospectus, 31 shelf prospectus, 32 red herring, 33 abridged, 34 criminal proceedings, 35 civil proceedings, 36 fraudulently inducing person to invest, 37 action by federal persons, 30 syllabus में है नहीं, 39 allotment of securities, 40 securities to be listed in stock exchange, securities listed है ना, 40 वाला securities to be dealt securities dealt with stock exchanges, 41 तुम्हारे syllabus में है नहीं, 42 private placement, 43 अब क्या तुम्हारे बच्चों, 43 kinds of share capital, 44 shares debentures or movable property, 45 numbering of shares, 46 share certificate, 47 voting rights, 48 variation of voting rights, 49 calls to be done on uniform basis, 50 calls in advance can be cut by the company, 51 calls in arrears can be adjusted against dividend payable, 52 securities premium, 53 securities not to be issued at discount, discounting वाला ना discount, 54 sweat equity, 55 redemption of preference shares, 56 transfer and transmission, 57 rectification of registered members है क्या, and 58 refusal and appeal against refusal, कौन सा रह गया, और एक तुम्हारा रह गया उसमें क्या बोलते हैं उसको, कौन सा बोलते हैं उसको, वो एनक्रोचमेंट नहीं, कोई पर्सोनेशन ऑफ शेयर होल्डर राइट, ये तुम्हारा शायद 50 कुछ तो है, 59 शायद रहेगा वो। 60 इज योर व्हाट बच्चों, काम का नहीं है, इट इज एडवर्टाइजमेंट ऑफ फिर से ऑथराइज्ड कैपिटल, 57 था क्या वो, ओके। देन 61 alteration of share capital, 62 further issue, 63 bonus, 64 notice to ROC about alteration, 65 66 तुम्हारा 66 reduction of share capital, 67 registration on financing for buyback, 68 buyback, 69 transfer to CRR account, कुछ काम का नहीं है, 70 prohibition on buyback, कर ही नहीं सकते हो, 71 debentures, yes चलिए everybody, 72 तुमको सिलेबस में नहीं है, ओके ऑल ऑफ यू, लेट्स गो अहेड। तो ये सेक्शन प्लीज सब कुछ बाय हार्ट कर लो या फिर तुम्हारे दिमाग में सब रखो, रोज रिवाइज किया करो, इसका एक ऑडियो फाइल बना लो, यस क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों डिपॉजिट के चैप्टर में, छोटा चैप्टर है वैसे कंपैरेटिवली, ओके छोटू चैप्टर छोटू, ओके। बट इसके ऊपर मेन क्वेश्चन क्या आता है कि डिपॉजिट कौन से अलाउड, मतलब कौन सा पैसा डिपॉजिट माना जाएगा, कौन सा नहीं माना जाएगा, ओके इसके ऊपर बच्चों ये क्वेश्चन आता है। और इवन बिफोर वी स्टार्ट द सेक्शंस, रूल्स में बच्चों बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बोला है कि दीज आर नॉट डिपॉजिट्स, या फिर तुम्हारे एक्सेप्शंस में आएंगे, क्लियर है लिया, आगे बढ़े हम लोग, ओके। आगे बढ़ते ठीक है। तो डिपॉजिट तुम्हारा बच्चों फिर से फाइनेंसिंग का तरीका, लोगों से पैसे लेने का, यस चलिए, पर लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा बच्चों, शॉर्ट टर्म वाला रहेगा। डिबेंचर तुम्हारा क्या देख लिया हम लोगों ने, क्या 30 साल तक था ना डिबेंचर्स का, बराबर है 10 साल 30 साल, डिपॉजिट्स आर शॉर्ट टर्म, डिपॉजिट बच्चों शॉर्ट टर्म, क्लियर क्लियर, मैक्सिमम 3 साल हम सब वो देखने वाले 36 मंथ्स। तो क्यों क्या कैसे उसका छोड़ दो, मेनली चलो हर एक चैप्टर में आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन, चैप्टर की नाम का डेफिनेशन तो तुमको पता होना चाहिए है ना, शेयर क्या डिबेंचर क्या, सिमिलरली यहाँ पे डिपॉजिट क्या, उसके बच्चे तुमको डेफिनेशन बाय हार्ट होना चाहिए, क्लियर लिया, चलो चल चेक करो। व्हाट डू मीन बाय डिपॉजिट, इंक्लूड्स एनी रिसीट ऑफ मनी, कुछ भी पैसा आया है ना, बाय वे ऑफ डिपॉजिट या फिर लोन, क्लियर। तो डिपॉजिट और लोन में बच्चों दोनों केस में तुम्हारे पास पैसा तो आ ही रहा है ना, उसका नेचर अलग है, उसके टर्म्स कंडीशन अलग है बच्चों, हाँ या ना एवरीबॉडी। यहाँ बच्चों जब डिपॉजिट होता है
पैसे देने वाला बच्चों इन अ वे उसको गरज है कुछ इंटरेस्ट की, है ना, और जो बच्चे जो लोन ले रहे हैं, दोनों केस में क्या हो रहा है, पैसे जा रहे हैं मान लो, है ना, एज अ डिपॉजिट, करेक्ट एवरीबॉडी। सो जो डिपॉजिटर है बच्चों उसके फायदे के लिए उसको इंटरेस्ट चाहिए, जिसे पैसा दिया, करेक्ट एवरीबॉडी। सेकेंडली, लोन का बच्चों फिर से इंटेंशन अलग है ना, जिसने बच्चों पैसा दिया एज अ लोन, उसको इंटरेस्ट कमाना है कि नहीं बच्चों, ये भी जरूरत हमको थी इन वे, क्लियर। तो दोनों केस में इनफ्लो तो हो रहा है पैसे को, अपने को बच्चों पैसे तो मिल रहे हैं, बट उसका पर्पस अलग अलग है। एंड यस, डिपॉजिट बच्चों विल बी वेरी 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 शॉर्ट टर्म कंपेयर टू लोन। आगे बढ़े, चलो। सो रिसीप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन और इन एनी अदर फॉर्म बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, आया ना, चेक करो, और लोन और इन एनी अदर फॉर्म बाय अ कंपनी, कैसे भी तुमको बच्चों को पैसा मिला रहेगा, बट डज नॉट इंक्लूड सच कैटेगरीज ऑफ अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। तो मतलब आरबीआई बताएगा कि कौन सा पैसा तुम्हारा डिपॉजिट नहीं रहेगा, बट अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड, लुक एट द वाइड स्कोप ऑफ द सेक्शन। क्या बोला है, कोई भी पैसा, अरे हाँ या ना, कोई भी बच्चों पैसा क्या रहेगा, उसको क्या मान लिया जाएगा बच्चों, डिपॉजिट है, एक्सेप्ट जो भी तुम्हारा देके रखा है एक्सेप्शंस में, है कि नहीं बच्चों, आरबीआई के लिस्ट के हिसाब से, ऑल ऑफ यू क्लियर, ऑल ऑफ यू, आरबीआई की लिस्ट के हिसाब से जो भी एक्सेप्शन है बस उतने ही माने जाएंगे जो डिपॉजिट नहीं है, वरना बाकी सब अमाउंट्स डिपॉजिट में ऐड हो जाएंगे। क्लियर ऑल ऑफ यू, यस। सी, डीम्ड एज डिपॉजिट मतलब माना जाएगा अलग होता है, और तुम्हारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से या फिर अकाउंट्स में तुम्हारा जो भी एंट्री मारोगे उसके हिसाब से उसका नेचर अलग होता है ना। तुमको अकाउंटिंग एंट्री शायद कुछ और बोलेगा, पर कंपनी लॉ के हिसाब से और ये सेक्शन के हिसाब से डिपॉजिट्स में क्या क्या आएगा ये हमको कैलकुलेट करना। क्लियर ऑल ऑफ यू, यस चलिए आगे बढ़े हम लोग, यस। तो हमको कौन से तरह से बच्चों पैसे आ सकता है, तो किसी ने लोन दिया या फिर किसी ने बच्चों टेम्पररी एडवांस दिया हमको, हाँ या ना, होता है बच्चों। जब कभी कभी हम प्रीपे कर लेते बच्चों, मान लो प्रीपेड कर लिया है, पैसे पहले से ही आ गया ना, है ना, किसी ने बच्चों अपने को प्रीपे कर दिया और हमने बच्चों को गुड्स या फिर सर्विस दिया ही नहीं, मान लो, ना ही गुड्स दिया और ना ही सर्विस दिया, है कि नहीं बच्चों, समझे एवरीबॉडी। तो इन दैट केस क्या हो गया, इन दैट केस क्या हो गया, अपने पास पैसे आगे पड़ गए या फिर अपने पास पैसे है, अपने गुड या फिर सर्विस नहीं दिया, ये तो आगे की चीज है, पर पहले पहले अपने पास पैसे आए, इवन दैट मनी कैन बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। हमको कोई भी तरह के कुछ भी पैसे आने दो, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट्स, एक्सेप्ट जो भी एक्सेप्शन में डाल के रखे हैं। चलो आगे बढ़े फिर हम लोग, चलो। डिपॉजिटर मींस, रेडी बच्चों, डिपॉजिटर मींस एनी मेंबर ऑफ द कंपनी who has made a deposit with the company as per 73(2), and any person who has made a deposit with the public company as per section 76। क्या तुमको बच्चों दो लाइन में से फर्क समझ रहा है, मैंने अंडरलाइन किया वो चीजों को। जब तुम तुम्हारे मेंबर्स से डिपॉजिट लेते हो, मतलब इन्हें घर वालों से ले रहे हो, घर वाले मतलब तुम्हारे मेंबर है ना वो, यस चलिए एवरीबॉडी, अपने ही लोग है, तो दैट कैन बी डन एज पर सेक्शन 73, यस चलिए। सब सेक्शन 2 हम लोग देख लेंगे उसका, करेक्ट, इन हाउस, करेक्ट, अपने ही लोग है। इट इज लाइक जैसे हम राइट शेयर्स का ऑफर करते हैं वैसी वाली बात, तो यहाँ से हम अपने उल्टा रिवर्स राइट शेयर्स मान लो, रिवर्स बच्चों हम लोग अपने मेंबर्स को बोल रहे कि हम तुम यू कैन डू डिपॉजिट विद अस, हम तुमको इंटरेस्ट वगैरह देंगे, हम बाहर वाले लोगों के पास नहीं जा रहे हैं टू गिव दिस डिपॉजिट, है ना, और टू अंडरटेक दिस डिपॉजिट, क्लियर लिया। तो यहाँ पे क्या, मेंबर, ठीक है, बट लुक एट दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनी पर्सन, नो कॉमन सेंस बच्चों में यहाँ पे क्या होगा, एनी पर्सन में तुम्हारा मेंबर भी आएगा एज वेल एज कौन आ सकता है, इंपॉर्टेंटली नॉन मेंबर भी आएगा। इज इट ओके एवरीबॉडी, इंपॉर्टेंटली यहाँ पे नॉन मेंबर, करेक्ट, मतलब कैन वी गो टू पब्लिक एट लार्ज, आओ डिपॉजिट करो, आओ डिपॉजिट करो हमारे पास, आओ डिपॉजिट करो हमारे पास, यस डेफिनेटली अलाउड। और कंपनीज बच्चों ऐसा इसका भी तरीका यूज करते हैं टू रेज द मनी, क्लियर ऑल ऑफ यू, रेज द मनी मतलब कुछ टेम्पररी पर्पस के लिए उनको, टेम्पररी काम के लिए उनको बच्चों, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए उनको पैसा चाहिए था, नॉट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, क्लियर एवरीबॉडी। ओके, so any person who has made a deposit with a public company,
तो नाउ व्हाट कॉमन सेंस वी अंडरस्टैंड इज, प्राइवेट कंपनी का बच्चों, प्राइवेट कंपनी बस अपने ही मेंबर के पास जा सकती है डिपॉजिट्स के लिए, पर पब्लिक कंपनी जो है वो बाहर भी जा सकती है, बाहर भी जा सकती है पब्लिक के पास डिपॉजिट लेने के लिए। बात समझी? दैट इज वन ऑफ द, यू कैन से सिंपल, यू कैन से बाइफर्केशन बिटवीन द सेम। क्लियर है? तो कभी भी गड़बड़ मत करना, प्राइवेट वाले बच्चों, प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक के पास जा ही नहीं सकती। ओके, बट एज पर सेक्शन 76, कौन सा? पब्लिक कंपनी गोइंग टू पब्लिक, उसमें भी कंडीशंस है, वो हम बाद में देखेंगे। समझा? सो इट इज नॉट दैट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल। क्लियर? आगे बढ़े। ये तुम्हारा बच्चों जो कंसेप्ट है, जो हम लोग करने वाले रूल्स वगैरह, ये तुम्हारा 2-3 पेजेस में जाता है, और उसके ऊपर भी क्वेश्चन पक्के से आता है कि व्हाट आर नॉट डिपॉजिट्स। क्यों बच्चों? व्हाई वी हैव टू सी कि क्या क्या डिपॉजिट नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन बच्चों काफी वाइड है। जो भी पैसा आया उसको हम डिपॉजिट मान रहे हैं। क्लियरली ऑल ऑफ यू? तो जिसको निकाल दिया बाहर बच्चों, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिसको निकाल दिया बाहर वो सब पैसे के ऊपर ये चैप्टर एप्लीकेबल नहीं होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो एवरीबॉडी? अब अगर मान लो कोई भी तरह का हमको पैसा आने दो, है ना, इट कैन बी सब्सिडी, इट कैन बी लोन, एडवांस आ गया अपने को, लेकिन किसी का डिपॉजिट रहेगा अपने पास, है कि नहीं बच्चों? एनी रीजन हम लोग को पैसा आया रहेगा बच्चों, वो सब फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लेवल पे, फिर फर्स्ट स्टेज पे, दे आर पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द डिपॉजिट, दे आर पार्ट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट। ओके, समझा कि नहीं समझा? तो अगर व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, लेट अस गिव यू सिंपल एग्जांपल, डिपॉजिट। डिपॉजिट में बच्चे तुम्हारे पास पैसा आता है, यस, लेट मी राइट डाउन दैट एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। हाँ यार, सिक्योरिटी बच्चों के पैसे रखने के लिए, इंटरेस्ट कमाने के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट देता है क्या कोई? ओके, अंडरस्टैंड, तुमको किसी का सिक्योरिटी डिपॉजिट मिला है, कोई भी वेंडर का रहेगा, कुछ भी रहेगा, ताकि वो उसका कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करे। ठीक है एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू ओके? तो ये तो क्या तुम उसको तुम इंटरेस्ट देने वाले हो क्या? ये तुम्हारे सिक्योरिटी के लिए तुमने बच्चों डिपॉजिट रखा उससे। कुछ बात समझी कि नहीं समझी? ऑल ऑफ यू टेल मी, ऑल ऑफ यू एवरीबॉडी, हैड यू हर्ड ऑफ बच्चों टेंडर अमाउंट? सुना है कभी टेंडर अमाउंट? तुमने टेंडर फ्लोट किया, टेंडर समझते हैं? टेंडर नहीं भाई, टेंडर। ओके, यस लिया कि ये काम होना चाहिए, ये हमको करवाना है, तो तूने वो वही इनविटेशन टू ऑफर वगैरह वो सब याद आ रहा है तुमको? तो एक बंदे ने भरा बच्चों टेंडर का फॉर्म, तो उसका एक टेंडर फॉर्म एलिजिबल होने के लिए, टेंडर फॉर्म पे बच्चों, टेंडर फॉर्म भरवा के प्रॉपरली होने के लिए, तो कंपनी बोला नहीं हमको एक डिपॉजिट चाहिए यहाँ पे स्टार्टिंग में। तुमने वो फॉर्म भर दिया, बाद में गायब हो गए तो कंपनी कैन टेक दैट सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब ये जो अब जस्ट एक एग्जांपल था, ये जो टेंडर का अमाउंट है फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट, बच्चों उसमें क्या कुछ पर्पस है, कुछ इंटेंशन है कि इंटरेस्ट कमाना था इसके ऊपर, या फिर यहाँ पे कंपनी का कुछ टेम्पररी लोन का रिक्वायरमेंट है, कुछ टेम्पररी पैसों का रिक्वायरमेंट था इसलिए डिपॉजिट करवाया गया है? बिल्कुल भी नहीं, इट इज नॉट मैचिंग एट ऑल। बट यहाँ पे हमको इनफ्लो आया क्या कैश का? यस, एज सुन हमको कैश का इनफ्लो आया, वी पुट इट इन द डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट। बात समझ रहे हो? सो इवन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर, कहने की बात ये है कि भले वो पैसा हमको नॉर्मल डिपॉजिट की तरह नहीं मिला था, तो भी डिपॉजिट ट्रीट किया जाएगा। क्लियर? अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द डेफिनेशन? क्लियर है? आगे बढ़े चलो। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि अगर एक्सेप्शन आया तो अच्छी बात, एक्सेप्शन आया, एक्सेप्शन बच्चों आया तो ही वो तुम्हारा डिपॉजिट नहीं है, ये चैप्टर एप्लीकेबल नहीं होगा। बात समझी सभी को? आगे बढ़ू मैं, चलो। विच वन? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट बाय वे ऑफ सब्सिडी, ग्रांट, एनीथिंग। ओके, चेक करो। तो फ्रॉम गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और अदर सोर्स, from anybody else, but whose repayment is guaranteed by the government or local authority or even any kind of statutory authority. Statutory authority मतलब तुम्हारे regulatory authority बच्चों, or any kind of government recognized institute. Okay, so amount received from government will not be treated as deposit. Amount received from foreign government, अपना government नहीं, तुम बाहर गए बच्चों भीख मांगने, जो भी है, फॉर एनी पर्पस, तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए या फिर तुमने उसको अप्लाई किया है कि हमको फंडिंग चाहिए इसके लिए, फॉरेन गवर्नमेंट में इन्वेस्ट किया, चलता है। ओके, सो फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट और फॉरेन और इंटरनेशनल बैंक्स, ओके, or multilateral financial institutions like ADB, Asian Development Bank, and so and so. Okay, subject to FEMA, मतलब obviously FEMA के रूल्स कंडीशन तुमको फॉलो करना पड़ेंगे, तो वो बात तो फॉरेन गवर्नमेंट से भी अगर लेते हैं हम लोग, या फिर तुम्हारे इंटरनेशनल लेवल के ये सब इंस्टीट्यूट्स, बैंक्स वगैरह हो गए, इवन दैट इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज अ डिपॉजिट। ओके एवरीबॉडी, सो एनी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट और फॉरेन गवर्नमेंट पैसा आया, दैट इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज अ डिपॉजिट। आगे बढ़े,
इंपॉर्टेंट, लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनी, यस चलिए ऑल ऑफ यू, लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनी, सो एनी लोन या फिर फैसिलिटी। एज सुन एज बच्चे फैसिलिटी वर्ड आता है, मतलब तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? व्हाट डू यू मीन बाय करेक्ट? ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, करेक्ट है ना, कि तुम थोड़ा ज्यादा खर्चा कर सकते हो देन योर लिमिट। सो इट इज टेम्पररी, तुम्हारा बच्चों ये टेम्पररी लोन माना जाएगा। सो एनी लोन और फैसिलिटी फ्रॉम बैंकिंग कंपनी और एसबीआई और सब्सिडरीज, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय सीजी और कोऑपरेटिव बैंक इज डिफाइंड बाय आरबीआई। अब इसके ऊपर बच्चों डायरेक्टली तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है, मुझको बताओ क्या लोन सिर्फ बैंक ही दे सकता है? कैन एनीबडी एल्स गिव अ लोन? टेल मी, क्या तुम तुम्हारे दोस्त को लोन दे सकते हो या फिर लोन ले सकते हो? पॉसिबल है ना एवरीबडी? यहाँ पे जस्ट तुमको एग्जांपल के लिए मैं कह रहा हूँ, इफ यू टेक लोन फ्रॉम लेट अस से अदर देन बैंक, है ना, अदर देन बैंक, समझा, एनीबडी एल्स ना, किसी से भी, दोज हु आर नॉट रजिस्टर्ड एज बैंक एज पर आरबीआई रूल्स इज सो एंड सो, यस एवरीबडी, जिसके ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन तुम्हारे नहीं लगते उसके ऊपर, दैट विल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट। कुछ बात समझी कि नहीं समझी? जस्ट राइट डाउन दिस ओवर देयर तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो एग्जांपल के लिए था, any loan from other any loan बच्चों from anybody other than a bank, okay, other than a bank, ठीक है ऑल ऑफ यू, विल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट। तो कोई किसी इंडिविजुअल से लिया तो मान लो, किसी इंडिविजुअल से लोन लिया तो दैट कैन बी डिपॉजिट। प्रमोटर हो गए, हाँ है ना, प्रमोटर, केएमपी एम्प्लॉई और एनीबडी एज रिलेटिव, ये सब हमको देखना है ना बच्चों? आगे बढ़े, आगे जाओ मैं बच्चों। लोन फ्रॉम पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तुम्हारे उसमें गवर्नमेंट का हाथ है ना, एलआईसी, आईडीएफसी एक्सेट्रा, नोटिफाइड बाय सीजी इन कंसल्टेशन आरबीआई, वो छोड़ दो, कौन कौन क्या क्या है पीएफआई, इसमें हमको जाने की जरूरत नहीं है। पर पीएफआई से लोन लिया पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो भी बच्चों तुम्हारा डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। यस चलिए, डन। जो इंपॉर्टेंट वो तुमको स्टार मार्क करके दिया है मैंने। आगे, सीपीस कमर्शियल पेपर्स, व्हाट आर सीपीस बच्चों? इट आर शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट्स इशूड बाय कंपनीज, इशूड बाय कंपनी, सो एनी अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट कंपनी ने बच्चों सीपी इशू किया रहेगा, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड एज पर रूल्स ऑफ आरबीआई, तो आरबीआई के रूल्स के हिसाब से तुमने जो भी कमर्शियल पेपर इशू किया है, जो उसके अगेंस्ट तुमको जो पैसा मिला है, दैट विल नॉट बी बच्चों ट्रीटेड एज व्हाट? डिपॉजिट। यस चलिए, तुमको शायद रहेगा ईएफएफ में है, तुमको ये ग्रुप में, मुझको बताओ, टेल मी एवरीबॉडी। ठीक है, नो प्रॉब्लम, फाइन। तो वो भी तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट्स ही है आरबीआई की तरह हिसाब से, ओके, समथिंग मोर फ्लेक्सिबल कंपेयर टू बैंक। बैंक ने तुम्हारा लोन पास करवाया नहीं करवाया, सो एज पर आरबीआई रूल्स के हिसाब से कुछ भी रहेगा, सब इंस्ट्रूमेंट जिसके अगेंस्ट वो लोग पैसा रेज कर रहे हैं। ओके एवरीबॉडी, इसको स्टार मार्क करो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटर कंपनी डिपॉजिट, वेरी इंपॉर्टेंट, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटर कंपनी डिपॉजिट्स। इज नॉट टू बी ट्रीटेड एज अ डिपॉजिट। तो एक कंपनी ने दूसरे बच्चों कंपनी के साथ डिपॉजिट किए हैं, विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट। यस, राइट डाउन प्लीज, इसको डायरेक्ट एमसीक्यू आता है, हम करेंगे बैच के बाद बच्चों, एमसीक्यू करेंगे तब आएगा ये, ठीक है? आगे बढ़े हम लोग, ऑल ऑफ यू,
फिर से और स्टार मार्क करो यहाँ पे। शेयर एप्लीकेशन मनी पर पैसा आ रहा है ना, शेयर एप्लीकेशन मनी में भी तुमको पैसा आ रहा है। नाउ हियर विल सी हियर, ये सब चीजें तुमको बच्चों पैसे ही आ रहे हैं। एंड वी सेड जो भी तुमको जो भी जैसा भी पैसा है वो डिपॉजिट है, एक्सेप्ट दीस थिंग्स। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? तो हियर नाउ चेक, शेयर एप्लीकेशन में जो मनी में भी तुमको पैसा आया। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ प्लीज 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 अच्छे से ध्यान देना बच्चों, ठीक है? पे अटेंशन। अमाउंट रिसीव्ड टुवर्ड्स सब्सक्रिप्शन, किसी और का पैसा अपने पास आया। शेयर एप्लीकेशन एडवांस, ओके, फॉर पेंडिंग अलॉटमेंट, तुमने बच्चों दिया उनको, मुझको बताओ, तुमने दिया शेयर तुमको अब तक? नहीं, तो डिपॉजिट माना जाएगा वो? नहीं, ओके। एनी एडजस्टमेंट ऑफ द अमाउंट फॉर एनी अदर पर्पस शैल नॉट बी ट्रीटेड एज रिफंड। तुमने बच्चों पैसा कहीं और घुमा दिया, तुमने उसको कुछ लड़े से डिबेंचर्स इशू करवा दिए, ओके, या फिर उसको कुछ गुड्स दे दिए उसके अगेंस्ट, दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज रिफंड। एनी एप्लीकेशन मनी पेंडिंग रिफंड आफ्टर 15 days of expiry of 60 days shall be treated as deposit. अब ध्यान देना, डू यू हैव टू बच्चों ऑल्सो रिफंड द मनी अगर अलॉटमेंट नहीं कर रहे हो तो? हाँ या ना? तो तुमको अलॉटमेंट करना है या फिर रिफंड करना है ना? अलॉटमेंट नहीं किया बच्चों, लेटर से तुम्हारा था ये प्राइवेट प्लेसमेंट में, मुझको बताओ, इन प्राइवेट प्लेसमेंट यू हैड दिस स्टोरी आल्सो, यस और नो? कि तुमको 60 days के अंदर अलॉटमेंट करना, और नहीं किया तो अगले 15 दिन के अंदर रिफंड किया, और नहीं किया तो 61st डे से बच्चों इंटरेस्ट लगता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो एवरीबॉडी? नाउ अंडरस्टैंड, अगर तुम्हारा अलॉटमेंट पेंडिंग है, जब तक वैलिडली लीगली अलॉटमेंट पेंडिंग है, ऐसा नहीं कि आज पैसा है कि कल आज पैसा आया तो कल के कल मैं शेयर दे दूं, तो आई हैव टाइम पीरियड टू गिव द अलॉटमेंट आल्सो, टू फिनिश द अलॉटमेंट आल्सो, हाँ या ना? तो तब तो कोई इशू नहीं है। पर अगर मैंने अलॉटमेंट नहीं किया और रिफंड भी टाइम पे नहीं दिया, तो मेरे पास जो पैसा पड़ा है वो डिपॉजिट माना जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ बात समझी कि नहीं? मैंने रिफंड करना चाहिए था, मैंने नहीं किया टाइम के अंदर, तो मेरा टाइम एक्सपायर हुआ रिफंड का, तो उसके बाद वो मेरा डिपॉजिट माना जाएगा। ये पैसा मेरे पास डिपॉजिटेड है, क्लियर? पैसा तो मेरे पास ही है, नो डाउट, बट बी कैटेगराइज्ड, डीम्ड, अंडरस्टूड एज व्हाट बच्चों? डिपॉजिट। क्लियर एवरीबॉडी? नहीं समझा? सी, अकाउंटिंग में करते हो तुम लोग, मुझको बताओ। शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ओके। एक चीज थोड़ा सा दिमाग में डालो, जैसे मतलब होता है ना कि अकाउंट्स और इनकम टैक्स कंप्लीटली अलग अलग है, दोनों के ट्रीटमेंट्स अलग अलग हो सकता है। तो हियर राइट नाउ जस्ट फोकस ऑन लॉ, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ अकाउंटिंग एंट्री। तुम्हारा कोई भी अकाउंटिंग एंट्री हम चेंज नहीं कर रहे, इतना दिमाग में डालो, यस और नो? तो तुम लोग शेयर एप्लीकेशन मनी के टाइम क्या करते हो? इशू ऑफ शेयर्स के टाइम वॉट एवर बैंक में तुम्हारा जो कोई तो बैंक अकाउंट है, उसमें पैसा आया, उसका एंट्री मार दिया तुम लोगों ने, हाँ या ना? यस टेल। और तुमने बच्चों पैसा रिफंड नहीं किया है। अब रिफंड क्यों? तुमने अलॉटमेंट नहीं किया तो रिफंड करना चाहिए था ना। सी सिंपली लॉजिक क्या है, दैट मनी कम्स इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, दिस मच यू अग्री? अब वो जो पैसे के साथ दो ही चीजें हो सकती है, ध्यान देना, वो पैसों के साथ दो ही चीजें हो सकती है। वो पैसे बच्चों विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट शेयर्स गिवन, अग्रीड और नो? दैट जो भी पैसा आया है दैट विल बी बच्चों एडजस्टेड अगेंस्ट शेयर्स अलॉटेड, क्लियर? या फिर शेयर अलॉटमेंट नहीं किया तो क्या होना चाहिए? वो पैसा बच्चों रिफंड चला जाना चाहिए, हाँ या ना? Here we are now discussing बच्चों कि मान लो पैसा कंपनी को आया, पर भाई साहब ने अलॉटमेंट भी नहीं किया, तो क्या करना चाहिए? मतलब देयर इज ऑब्वियसली सम टाइम पीरियड ना कि हम उसको अलॉटमेंट कर दें। टाइम पीरियड तुम्हारा एक्सपायर हो गया, तुमने अलॉटमेंट नहीं किया, अग्री टिल ईयर, अलॉटमेंट नहीं किया, तो उसके बाद तुम्हारे पास क्या है बच्चों? मान लो 15 days एक्स्ट्रा टू रिफंड द मनी। ये स्टोरी हम लोगों ने बच्चों कहाँ पे देखा? प्राइवेट प्लेसमेंट में देखा है, दैट विद इन 60 days यू शुड अलॉट, वरना उसके अगले 15 दिन के बाद रिफंड करो। बात समझी? यस और नो? तो अगर तुमने 15 दिन के बावजूद भी उसको रिफंड नहीं किया, तो जो पैसा तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, दैट मनी will now be बच्चों treated as deposit. Did you get the point or no? लेट अस से तुम्हारे पास मान लो 1 लाख रुपए पड़े हुए हैं एज शेयर एप्लीकेशन मनी, क्लियर लिया? तो जब तक I'll write down this also, allotment पेंडिंग है, ओके एवरीबॉडी? तो तब तो बच्चे पैसा क्या है? डिपॉजिट नहीं है। कुछ बात समझी कि नहीं समझी? सी डोंट गेट कंफ्यूज विद द वर्ड डिपॉजिट। इसको बस एक क्या समझो, एक टैग है, वो टैग समझना, टैग मतलब एक नाम है फिलहाल, समझा? वो पैसा अपने को ऑब्वियसली अलग पर्पस के लिए आया था, पर वो डिपॉजिट माना जाएगा बाद में। कब बच्चों माना जाएगा? चेक करो,
रिफंड ड्यू। कुछ बात समझ रही कि नहीं? ओके, रिफंड तुम्हारा जो ड्यू डेट था वो तुम्हारा रिफंड ड्यू डेट में लिख रहा हूं एक्सपायर्ड। कुछ बात समझी ना? एज पर कंपनी लॉ, सी वो पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट में ही है रे बाबा, वो हम लोग नहीं चेंज करें, बट एज पर कंपनी लॉ अब ये जो 1 लाख रुपए है उसका बच्चों क्या हो गया, कन्वर्जन हो गया, क्या माना जाएगा, आया ना बच्चों, डिपॉजिट माना जाएगा। यस एवरीबॉडी, एवरीबॉडी ओके लिया? डिपॉजिट माना जाएगा फॉर कंपनीज एक्ट के लिए, कंपनीज एक्ट के लिए। यस, इसका तुम बोलोगे सर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, डिपॉजिट है या नहीं, उसमें इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? ऑब्वियसली पड़ेगा, बिकॉज देयर इज अगेन बच्चों कंसेप्ट ऑफ सीलिंग लिमिट। अब एक बात सोचो, अगर तुमको थोड़ा सा प्राइवेट प्लेसमेंट समझा था, ध्यान देना, ओके, थोड़ा सा ध्यान दो अभी। तो प्राइवेट प्लेसमेंट में बहुत एक अच्छी लाइन लिखी हुई है कि अगर प्राइवेट प्लेसमेंट का गलती से भी कोई ऑफर पब्लिक में गया, प्राइवेट प्लेसमेंट का बच्चों गलती से भी कोई भी ऑफर की डिटेल्स पब्लिक में गए, पब्लिक में पब्लिश हो गए, मतलब तुम्हारी तुम्हारी तरफ से ही लीगली, तो उसको पब्लिक ऑफर माना जाएगा। प्राइवेट प्लेसमेंट कर रहे थे पर तुमने ऑफर दे दिया बहुत सारे लोगों को एक साथ, ऑफर पब्लिक में ऑफर दे दिया गलती से भी मतलब लटे से, तो प्राइवेट प्लेसमेंट बच्चों पब्लिक ऑफर माना जाएगा। अब पब्लिक ऑफर माना गया, इसका मीनिंग क्या है कि तुमको बच्चों पब्लिक ऑफर के सब सेक्शन फॉलो करने पड़ेंगे, फिर सेक्शन नंबर 22 से लेके 23 से लेके 41 तक। कुछ याद है ना मैं क्या कह रहा हूँ? अगर तुमने प्राइवेट प्लेसमेंट का बच्चों सेक्शंस कुछ भी फॉलो नहीं किए या फिर कुछ कुछ सेक्शन तुम्हारे रह गए, मिस हो गए कंप्लायंस से प्राइवेट प्लेसमेंट के, तो बच्चों प्राइवेट प्लेसमेंट भी डीम्ड एज पब्लिक ऑफर। और जैसे तुम्हारा पब्लिक ऑफर है, सेक्शन 26 वगैरह सब तुम्हारे साथ चिपक गए, हमारा प्रोस्पेक्टस किधर है, प्रोस्पेक्टस का कंटेंट किधर है, कुछ बात समझ रहे कि नहीं? ओके एवरीबॉडी, तो कुछ सेक्शन नॉन कंप्लायंस किया तो ऑब्वियसली बच्चों इट विल बी डीम्ड एज पब्लिक ऑफर। सिमिलरली हियर, कि अगर तुम्हारा ये सब चीज हुई है ना, कि तुमने पैसा रिफंड टाइम के अंदर नहीं किया, तो पैसे को डिपॉजिट माना जाएगा। अब डिपॉजिट माना गया मतलब ये पूरा चैप्टर के जो भी रूल्स कंडीशंस कंप्लायंसेस है, रिपोर्टिंग है, सब एप्लीकेबल हो जाएगा ना? कुछ समझा कि नहीं समझा? ये सभी ये पूरे चैप्टर के बच्चों रूल्स रेगुलेशंस कंप्लायंसेस रिपोर्टिंग सब एप्लीकेबल हो जाएगा। बात समझी? ऑल ऑफ यू ओके लिया? मतलब इसकी भी ये चैप्टर के पेनल्टीज अभी लग जाएंगे। तुम्हें बच्चों डायरेक्ट चैप्टर ही शिफ्ट करवा दिया, वो पैसों का जो नेचर था उसका बच्चों चैप्टर ही शिफ्ट करवा दिया। नाउ इट इज नो मोर कंसिडर्ड शेयर एप्लीकेशन मनी ओनली, इट इज कंसिडर्ड एज डिपॉजिट। और बच्चों किसी का डिपॉजिट अगर टाइम के अंदर नहीं दिया तो डिपॉजिट के चैप्टर के हिसाब से पेनल्टीज लगेंगे ना अभी। Is it okay everybody getting my point? Importance of treating it as a deposit or not a deposit. डायरेक्ट बच्चों तुम चैप्टर में ला रहे हो या फिर चैप्टर से उड़ा रहे हो, वो वाली बात हो रही है। क्लियर? एग्जांपल देखो बच्चे, यहाँ मान लो देयर इज ऑब्वियसली वन कांसेप्ट व्हिच वी हैव टू डू, दिस वन करेंगे, इसमें हम लोग बाद में जाएंगे, बट लुक एट द हेडिंग। रूल 33 में आता है तुम्हारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स, मतलब देयर इज अ सीलिंग लिमिट बच्चों, हम कितने डिपॉजिट, सीलिंग लिमिट और हाउ मच डिपॉजिट वी कैन टेक एट अ टाइम। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो हमको जेन्युइनली कुछ पैसा डिपॉजिट भी लेना था, ध्यान दो अभी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जेन्युइनली कुछ पैसा हमको डिपॉजिट में भी लेना था कि हाँ भाई हमको डिपॉजिट दो, हम आपको इंटरेस्ट देंगे, हाँ है ना? पर इसके कुछ ना कुछ एक अपर लिमिट है, देयर इज अ सीलिंग लिमिट। ओके एवरीबॉडी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट अब क्या हो गया, ध्यान देना, तुम्हारे पास कुछ शेयर एप्लीकेशन मनी आया था और तुमने उसको रिफंड नहीं दिया, नाउ दिस शेयर एप्लीकेशन मनी विल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट, और बिकॉज नाउ इट इज ट्रीटेड एज डिपॉजिट, ये तुम्हारा एक अपर लिमिट में जगह कंज्यूम करेगा। अपर लिमिट में कुछ ना कुछ जगह कंज्यूम करेगा। कुछ समझा कि नहीं समझा? लेट मी जस्ट गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। ओके, कोई कंपनी है, ओके, उसका सीलिंग लिमिट है। सीलिंग लिमिट बच्चों हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि हाँ हम कितने डिपॉजिट ले सकते हैं, उसके लिए हम रूल इसमें आएंगे बाद में, रूल 33 में बाद में आएंगे। ओके एवरीबॉडी, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल सीलिंग लिमिट की बात कर रहा हूं मैं, 100 लेट अस से लैक्स जो भी है, ओके 1 करोड़, इज इट ओके? ये सीलिंग लिमिट है। मैंने बोला क्या कि कंपनी ने इतने का डिपॉजिट लिया, मैंने ऐसा बोला क्या कि कंपनी ने इतने का डिपॉजिट ले लिया है, ऐसा मैंने बोला बच्चों? नहीं बोला ना। ओके एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू ओके लिया? ये सीलिंग लिमिट बच्चों कैलकुलेट किया। नाउ अंडरस्टैंड, अब तक आज के जमाने में बच्चों लेट अस से डिपॉजिट एक्चुअली टेकन, ओके, बात समझी? लेट अस से बच्चों इज नील, कुछ भी पैसा लिया नहीं कंपनी ने। ओके एवरीबॉडी, पर अगर
एप्लीकेशन मनी नॉट रिफंडेड, कुछ समझा कि नहीं समझा? जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, इज ₹80 lakhs। बात समझी? तुमको डिपॉजिट मिला क्या बच्चों? वो नहीं, एप्लीकेशन मनी था, तुमने रिफंड नहीं किया 80 लाख का। अब बच्चों उसका परिवर्तन हो गया, मुझको बताओ, चेंज हो चुका। इसको हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे बच्चों? डिपॉजिट मानेंगे। इसका कुछ इंपैक्ट समझा? अभी क्या समझा? कि भले बच्चों हमने आज के जमाने में 1 रुपए का भी डिपॉजिट नहीं लिया था और हमारा सेलिंग लिमिट 100 लाख था, 100 लाख, स्टिल व्हाट विल हैपन नाउ? वी कैन एक्चुअली टेक सम डिपॉजिट ओनली अप टू द अमाउंट ऑफ 20 lakhs। अक्षता ओके, समझा? अमन, टेल मी, अभय, जो भी है, इंद्रजीत, निधि, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऑल ऑफ यू टेल मी। नाउ दिस स्टोरी जो तुमको मैंने स्टोरी अभी समझाया, दैट स्टोरी इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द एक्सेप्शन जो हम लोग कर रहे हैं, कि डिपॉजिट में आना और डिपॉजिट में नहीं आने का मीनिंग क्या होता है। ये पूरा चैप्टर बुक जो एप्लीकेबल हो सकता है, या फिर तुम चैप्टर से मुक्ति पा सकते हो। देखो तुमने लोन लिया, कॉमन सेंस। नाउ लेट मी आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन, तुमने बच्चों बैंक से लोन लिया, ये चैप्टर एप्लीकेबल होगा बच्चों लोन के ऊपर? बिल्कुल भी नहीं। बात समझ रहे हो ना? गुड। लोन वरना वरना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तुमको सीलिंग लिमिट तक पहुंचो फिर समझ जाएगा। आगे बढ़ू मैं बच्चों? चलो, इधर तो 3 स्टार दे दो भाई साहब। अमाउंट फ्रॉम डायरेक्टर, रेडी बच्चों? अमाउंट फ्रॉम डायरेक्टर। सो एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्टर और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्राइवेट कंपनी। ओके, ध्यान देना क्या बोला मैंने तुमको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले देखा बच्चों, बताया तुम बैंक से लोन ले सकते हो या फिर नॉन बैंकिंग से भी ले सकते हो। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी नहीं, एनीबडी अदर देन बैंक। तो तुमने अपने घर लोगों से ले लिया बच्चों पैसा, प्रोमोटर्स वगैरह, तो डायरेक्टर से बच्चों पैसा लिया हम लोगों ने। कहां से लिया है? डायरेक्टर से। सो अमाउंट फ्रॉम डायरेक्टर। ठीक है, तो लुक एट अगेन वर्डिंग्स, any amount received from director or a relative of director in case of a private company will not be treated as a deposit। इसके ऊपर अच्छे से ध्यान दो अभी, ठीक है? किसने किसको पैसा दिया? डायरेक्टर ने बच्चों कंपनी को पैसा दिया। यस, ऑब्वियसली लेट मी कॉल इट एज लोन ओनली। यस और नो? तो उन्होंने स्टार्टिंग में क्या लिखा? इस ये हम लोग फिलहाल एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं ना? हाँ है ना, ये फिलहाल एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं। तो डायरेक्टर ने बच्चों कंपनी को लोन तो भी दिया तो भी चलेगा, एंड वी विल नॉट ट्रीट इट एज अ डिपॉजिट, but this is possible only if certain conditions are fulfilled। ओके, कुछ बात समझी? कि जो पैसा डायरेक्टर ने बच्चों कंपनी को दिया है उसको हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे, प्रोवाइडेड सम कंडीशंस आर फुलफिल्ड। क्या कंडीशन बच्चों फुलफिल्ड? पहला वाला, द डायरेक्टर और रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर विल गिव अ रिटन डिक्लेरेशन। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिक्लेरेशन। प्लीज अंडरस्टैंड, इसको रिपीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा वरना। वो बच्चों डिक्लेरेशन देगा। कौन दे रहा है डिक्लेरेशन? नालायक को, डायरेक्टर। वो डिक्लेरेशन देगा कि ये जो पैसा मैंने कंपनी को दिया है, ओके, ये जो पैसा जो मैंने कंपनी को दिया है, ये मेरे खुद के फंड से दिया है, खुद के सेविंग से ही दिया है। मुझको किसी ने लोन दे के, और फिर ये लोन मैंने कंपनी को आगे पास नहीं किया है। कुछ बात समझ रहे हो? कि मैंने कहीं से लोन उठाया और फिर वो लोन मैंने आगे कंपनी को दिया है, ये वाला केस नहीं है। डिक्लेरेशन दैट, ध्यान देना, मनी गिवन टू कंपनी इज आउट ऑफ ओन फंड्स। कुछ समझा? अरे हाँ या ना? इज आउट ऑफ ओन फंड्स। क्लियर है कि नहीं बच्चों? यस एवरीबॉडी? तो हम ये जो डायरेक्टर की जो चीज है ना, ये लूप होल करके एज ए लूप होल नहीं होनी चाहिए ना। लूप होल मतलब क्या? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर क्लैरिफिकेशन। अगर बैंक ने बच्चों अपने को लोन दिया, बैंक तो बेस्ट है ना? इज इट अ डिपॉजिट? नहीं। इज इट ओके एवरीबॉडी? आर यू फॉलोइंग मी बच्चों? अगर बैंक ने तुमको लोन दिया, इज इट अ डिपॉजिट? नो। क्लियर? मान लो बैंक लोन देने से मना कर रही है फॉर सम रीजंस, तो किसी और के पास गई, कोई भी इन्वेस्टर हो गया या जिसका बहुत पैसा है वो इंडिविजुअल हो चुका, हाँ या ना एवरीबॉडी? इन्वेस्टर, मैंने यहाँ पे इन्वेस्टर लिखा है, फिर से लिखता हूँ, ठीक है? पर हमको अभी जस्ट अपन ऊपर देखा था कि कोई इंडिविजुअल या फिर नॉन बैंकिंग वाले से हमने लोन लिया,
तो बच्चों क्या वो डिपॉजिट माना जाएगा? अरे हाँ या ना? यस। तो उसको इन्वेस्टर ने फिर नॉन बैंकिंग वाले डायरेक्टली लोन दिया, दैट विल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट। तुमने बच्चों में और एक एक्सेप्शन देखा कि अगर तुम डायरेक्टर लोन देते तो डिपॉजिट नहीं है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर डायरेक्टली इन्वेस्टर लोन देता है, इन्वेस्टर मतलब कोई भी बाहर का इंसान है, लेट अस से, उसने लोन दिया तो डिपॉजिट, डायरेक्टर ने लोन दिया तो नो डिपॉजिट। तो बच्चों इसमें क्या जुगाड़ कर सकती है कंपनी? कुछ कॉमन सेंस समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? क्या जुगाड़ कर सकती थी कंपनी की इन्वेस्टर बोले भाई साहब एक काम करो ना, आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, आप डायरेक्टर के थ्रू भेज दीजिए। हाँ या ना? कुछ बात समझी? आप देंगे तो हमको डिपॉजिट दिखाना पड़ेगा, जहां पे हमको पूरा सेक्शन फॉलो करना पड़ता है, चैप्टर फॉलो करना पड़ता है। उससे बेटर आप डायरेक्टर को दे दो और डायरेक्टर हमको दे देगा, तुम तुम्हारी बीच का अग्रीमेंट कर लो, हम हमारे बीच का अग्रीमेंट कर लेते हैं। आई गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? तो ये तरीका अवेलेबल था ना, एक वन ऑफ द लूप होल्स, कि हाँ भाई डायरेक्टर ने लोन दिया तो उसकी डिपॉजिट नहीं, अरे पर डायरेक्टर को किसने दिया वो भी तो देखना चाहिए हम लोगों ने। इसलिए हमने कंडीशन डाला है अभी। वी हैव नाउ अगेन प्लग बैक दैट पर्टिकुलर लूप होल। वो लूप होल बच्चों फिर से बंद कर दिया। बात समझिए कि डायरेक्टर को बोलना पड़ेगा, डायरेक्टर को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि उसने कहीं और से वो पैसा उठाया नहीं है। बात समझिए सभी को? ऑल ऑफ यू क्लियर? उसे योर फर्स्ट कंडीशन, और वही इंपॉर्टेंट कंडीशन, कुछ नहीं है, चेक करो। रिटन डिक्लेरेशन दैट अमाउंट इज नॉट being given out of funds acquired by him through borrowing or accepting loan or deposit from others. उसने अपने खुद के जेब से पैसा दिया है। क्लियर लियो, किसी और से नहीं उठाया पैसा। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट यू कैन से कंडीशन। सेकंड, अब ये भी जो भी चीज हुई है, दिस ट्रांजैक्शन बिटवीन द डायरेक्टर एंड द कंपनी, द ट्रांजैक्शन बिटवीन द डायरेक्टर एंड द कंपनी इज रिपोर्टेड इज ओके, लोन इज रिपोर्टेड, टाइम पास है कुछ नहीं खास, इन बोर्ड्स रिपोर्ट। इज इट ओके एवरीबॉडी? द लोन इज रिपोर्टेड इन बोर्ड्स रिपोर्ट। ठीक है एवरीबॉडी? अरे बोलो हाँ, ठीक है ना? ठीक है एवरीबॉडी? आगे जाओ मैं बच्चों, एवरीबॉडी चलो, ये तुम्हारे दो कंडीशन रहना, ठीक है? और यहाँ पे प्लीज अंडरलाइन करो, रिलेटिव किसके लिए इंपॉर्टेंट है? अगर प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर का रिलेटिव दे रहा है तो फिर वो तुम्हारा, वो भी उसको रिपोर्टिंग करवाना पड़ेगा। मतलब पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर के रिपोर्ट, डायरेक्टर के रिलेटिव ने किया तो चलता है, दैट इज नॉट एन इशू। क्लियर ऑल ऑफ यू? अरे हाँ या ना एवरीबॉडी? क्लियर? अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तो प्राइवेट कंपनी में बच्चों, सॉरी हाँ, प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर के रिलेटिव ने दिया, डायरेक्टर के रिलेटिव ने दिया, दैट इज नॉट अ डिपॉजिट, है ना? हम लोग एक्सेप्शन कर रहे हैं ना बच्चों, एक्सेप्शन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? सो एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम डायरेक्टर इज नॉट अ डिपॉजिट, ठीक है? एज वेल एज प्राइवेट कंपनी के लिए हमने थोड़ा स्कोप बढ़ा दिया। स्कोप बढ़ा दिया मतलब क्या? डायरेक्टर के रिलेटिव ने भी दिया, डायरेक्टर के रिलेटिव ने भी दिया, तो भी डिपॉजिट नहीं है। पर भाई साहब ये सब चीजें हमको डिक्लेरेशन चाहिए, दूसरा रिपोर्टिंग चाहिए। बात क्लियर है? ये याद रहेगा तुमको अच्छे से? मुझको बताओ फटाफट, ऑल ओके है? यस और नो? आगे बढ़ू मैं? चलो आगे बढ़ते फिर। बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, पैसा आया आया, शेयर एप्लीकेशन मनी, पैसा तो हमको आ रहा है बच्चों। तूने यहाँ पे फिर बॉन्ड्स और डिबेंचर्स अगर लिखा, उसका मीनिंग क्या है? वी हैव इशूड बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, है ना? वी हैव इशूड बॉन्ड और डिबेंचर्स, ठीक है? अब डिबेंचर्स में लाइक वी हैव डिस्कस थोड़ा सा बच्चों, देयर कैन बी पार्शियल रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, इंटरेस्ट तुम्हारा रेगुलरली जाता रहेगा। बॉन्ड्स का मैच्योरिटी बच्चों डायरेक्ट 2000 क्या 2030 35, इट्स लाइक डायरेक्ट लॉन्ग टर्म, डायरेक्ट बच्चों लॉन्ग टर्म, उसमें पार्शियल पेमेंट वगैरह कुछ नहीं होता, डायरेक्टली जो भी मिलेगा वो फ्यूचर में मिलेगा। यस चलिए ऑल ऑफ यू, मैच्योरिटी डेट पे, यस चलिए। आगे जाऊं मैं? बॉन्ड्स और डिबेंचर्स secured by a first, पे अटेंशन, ओके पे अटेंशन, हम अभी यहाँ पे एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं। एक्सेप्शंस, दे आर नॉट डिपॉजिट्स, है ना? तो secured by first charge on any assets excluding intangible assets। फर्स्ट चार्ज, सेकेंड चार्ज मतलब अधिकार,
है ना एवरीबॉडी? तो सेकंड चार्ज है या फिर तुम्हारा सेकंड राइट आ रहा है ऑन दैट पर्टिकुलर यू कैन से असेट, जो भी तुमने बॉन्ड या फिर डिबेंचर्स इशू किए हैं, सिक्योर करवाए हैं, बट सिक्योरिटी तुम्हारा सिक्योरिटी का जो सीक्वेंस है सेकंड है मान लो। यस चलिए, इन दैट केस दैट इज नॉट अलाउड। हमको कौन सा वाला बच्चों एक्सेप्ट होगा, तुम्हारा डिपॉजिट एक्सेप्शन में जाएगा, which is secured by first charge on any assets but excluding intangible assets. Done till all of you? Second charge रहेगा तो deposits. Intangible assets पे कर दिया तो deposits. बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? स्टार मार्क करो प्लीज इसको, ठीक है? पहले वाले को स्टार मार्क कर दो। फालतू के एमसीक्यू क्वेश्चन आते तुमको उसके ऊपर, एक एक वर्ड के ऊपर, ओके? तो सेक्योर्ड तुमको एक्सेप्शन याद रखो, सेक्योर्ड बाय फर्स्ट चार्ज ऑन एनी एसेट एक्सक्लूडिंग इंटेंजिबल। तो अगर ऐसा रहा, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स ऐसा तुमने इशू करवाया था, दैट इज नॉट अ डिपॉजिट। अभी तुम इसमें से तुम्हारा कुछ भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, इधर दिस और दिस, तो वो डिपॉजिट माना जाएगा। क्लियर? बॉन्ड्स डिबेंचर्स कन्वर्टेबल विद इन 10 years, कन्वर्टेबल आफ्टर 10 years रहेगा तो इशू करते वक्त ही। टेल मी, इंपॉर्टेंट बात समझी क्या नहीं अभी? तो इट इज कन्वर्टेबल आफ्टर 12 years, 15 years, 20 years, that is a deposit. Clear? Then the amount of secured bonds or deposit debentures बच्चों should not exceed the market value as assessed by registered value is okay. Okay? तो जो भी तुमने अमाउंट का इशू किया है बॉन्ड डिबेंचर्स, उसका एक्चुअली वैल्यूएशन बच्चों करवाना चाहिए हमारा, है ना? रजिस्टर्ड वैल्यू उसका वैल्यूएशन करवाएगा, और जो अमाउंट हम लोगों ने दिया इट शुड बी लेस देन ऑब्वियसली मार्केट वैल्यू, इट कैन नॉट बी मोर देन द मार्केट वैल्यू। दैट इज ओके? देन ये तुम्हारे पास वहां पे और एक कंडीशन था दूसरा, any amount raised through NCD, please understand, non-convertible, मैं NCD लिखूँ, non-convertible debentures, not constituting charge on company's assets. Can I call this as unsecured? बच्चों नलायक को कुछ समझ रहा है कि नहीं? अरे हाँ या ना? Not constituting charge on company's asset and listed, माँ कसम। तो listed unsecured NCD, yes everybody? Listed unsecured, your NCD is a deposit or not a deposit? Is not a deposit. Exception में गया कि नहीं गया? गया। All of you okay till here? क्योंकि जो secured वाला था बच्चों का, तुमने यहाँ पे ध्यान दिया था पहले, तो तुम्हारा अपने आप ही तुम्हारा बच्चों एक्सेप्शन में चला जाता है, secured है तो भले वो लिस्टेड हो, लिस्टेड नहीं हो, कन्वर्टेबल हो, कन्वर्टेबल हो या ना हो, सेक्योर्ड है तो बच्चों अपने आप वो एक्सेप्शन में चला गया, दैट इट इज नॉट अ डिपॉजिट। क्लियर क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है ना एवरीबॉडी? आगे बढ़े हम लोग। ऑल ऑफ यू ओके? सो एनी अदर बॉन्ड्स या फिर डिबेंचर्स अदर देन दी अबव, अदर देन दी अबव मतलब क्या बच्चों? तुम्हारे कंडीशंस फुलफिल नहीं हुए हैं कुछ ना कुछ, तो क्या हो जाएंगे बच्चों? वो डिपॉजिट माने जाएंगे। क्लियर ऑल ऑफ यू? बात समझ रहे हो सब लोग, है ना एवरीबॉडी? टेल मी, अनलिस्टेड तो क्या हो जाएगा? अगर एग्जांपल दूं मैं यहाँ पे तुमको, तो अनलिस्टेड अनसिक्योर्ड एनसीडी, तो तुम्हारा डिपॉजिट माना जाएगा। क्लियर? ये चीजों को प्लीज थोड़ा सा अच्छे से बाय हार्ट करो, ये अभी लॉ में वही है यार, बार बार पढ़ने का, तो एक बार तुमको तो अभी वही है यहाँ पे, तो तुम्हारे फिर से कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, बट याद तुमको बार बार रखना है। क्लियर लिया? आगे बढ़ू? यस इंद्रजीत आ रहा था शायद, हाँ तुम्हारा आए थे मैसेज, पता नहीं, वरना एवरीवन में डालो। एम्प्लॉय डिपॉजिट रेडी बच्चों? लेते हम लोग एम्प्लॉय डिपॉजिट? यस कभी कभी लेते, सिक्योरिटी चार्ज करके सिक्योरिटी के लिए लेते हैं हम लोग। सुना कभी बॉन्ड वगैरह, बॉन्ड 2 साल का बॉन्ड सर नॉट इक्वल टू डिवेंचर्स, कौन सा वाला? नॉट इक्वल टू डिपॉजिट्स ना, अगर ऊपर की कंडीशंस फॉलो नहीं किए तो वो डिपॉजिट्स है।
है ना। हाँ, अगर मैंने तुमको एग्जांपल दिया अनलिस्टेड, अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, एनसीडी, तो ये तुम्हारा डिपॉजिट, हाँ सॉरी, अच्छा ये डिबेंचर, सॉरी सॉरी, हाँ डिबेंचर्स लिख दिया मैंने बच्चों, ये डिपॉजिट था। ओके, यस, ठीक है, ये वाली आई थिंक तुम कह रहे थे। यस चलिए, ठीक है, गॉट इट गॉट इट गॉट इट, गॉट माय पॉइंट। आगे बढ़े हम लोग। एम्प्लॉय डिपॉजिट रेडी। हमने बच्चों 12 महीने के आगे का बच्चों अगर उससे लिया है एम्प्लॉय से, होता है बच्चों, बॉन्ड का तुम्हारा अग्रीमेंट होता है कि हमने तुमको इतना पढ़ाया सिखाया ट्रेन किया और तुमको छोड़ के जा रहे हो बीच में, राइट लिया, तो अगेन इन दैट केस इट विल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट। ये अभी यहाँ पे क्लियर कर, ये सिक्योरिटी डिपॉजिट ही है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। बट इफ द डिपॉजिट बच्चों अमाउंट इज मोर देन द एनुअल सैलरी, आर यू गेटिंग अ पॉइंट? सो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉई, okay, not exceeding his annual salary under contract of non interest bearing security deposit। जनरली बच्चों सिक्योरिटी डिपॉजिट जनरली तुम्हारा नॉन इंटरेस्ट बेरिंग ही होता है। नॉन इंटरेस्ट में तुमको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, मतलब क्या, तुमने बच्चों कभी कोई रेंट पे घर लिया रहेगा, दिया रहेगा, फ्लैट रेंट पे लिया रहेगा, दिया रहेगा, करेक्ट, तो लैंडलॉर्ड ने बच्चों 1 महीने का रेंट ले लिया एज अ डिपॉजिट, एंड व्हेन ही गिव्स यू बैक आफ्टर 12 मंथ्स, 12 महीने के बाद तुमको वो डिपॉजिट रिटर्न कर रहा है, तब इंटरेस्ट के साथ थोड़ी देता है वो, है ना। द डिपॉजिट इज बच्चों इंटरेस्ट नहीं मिलता, नॉन इंटरेस्ट बेरिंग होता है वो, हाँ या ना, क्लियर क्लियर एवरीबॉडी। तो अब ध्यान देना प्लीज अंडरस्टैंड, इफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट दिस ये वाला इज मोर देन ऑफ 12 मंथ्स सैलरी, कुछ बात समझेगी नहीं, तो वो अपने आप तुम्हारा डिपॉजिट माना जाएगा, इवन इफ द नेचर इज इन द, इवन इफ द नेचर इज व्हाट बच्चों, एज पर एम्प्लॉय का डिपॉजिट, है ना। देन ट्रस्ट, एनी नॉन इंटरेस्ट बेरिंग अमाउंट रिसीव्ड एंड हेल्ड इन अ ट्रस्ट। चलिए, इसका कुछ एग्जाम्पल है नहीं, बट जो भी पैसा आया है एंड यू हैव केप्ट इट इन अ ट्रस्ट, even that बच्चों will be treated as what, deposit। that is sorry, ये तुम्हारा ट्रस्ट में लिखा है, any non interest bearing amount received and held in a trust is not a deposit, एक्सेप्शन में ना हम लोग, is not a deposit, क्लियर। यहाँ पे स्टार मार्क कर दो एम्प्लॉय वाला, 12 महीने के पहले 12 महीने के बाद, क्लियर। अब पिछले कुछ सेक्शन में हम लोगों ने देखा था 67 में 67(2)(c) शायद था वो, है ना, याद है वहां पे क्या था, 6 महीने का सैलरी था, याद आ रहा है कि नहीं, कंपनी कितने का लोन दे सकती है टू अलाउ द एम्प्लॉय टू बाय शेयर्स ऑफ द कंपनी, वो सब था, क्लियर ऑल ऑफ यू। आगे बढ़े हम लोग, चलो रेडी। सप्लायर एडवांसेस और डिपॉजिट्स, इंपॉर्टेंट। सप्लायर एडवांसेस डिपॉजिट बहुत बार आ सकते तुम्हारे पास, तुमको बच्चों एडवांस ही मिला है तुम्हारे वेंडर से, हाँ है ना, वेंडर में तुम्हारा मान लो तुम्हारा कोई ना कोई कस्टमर है, इज इट ओके, तुमको एडवांस दे दिया पैसा, पर आया ना पैसा, तुम मान लो तुम उसको उसको दोगे भी, गुड्स एंड सर्विसेज दोगी, तुम्हारा उसका जो भी उसका रिक्वायरमेंट था, कर ऑल ऑफ यू, यस और नो। फिर भी, फिर भी क्या, उसको हम लोग क्या मानेंगे, बस पैसा तो तुम्हारे पास आया ना, तो डायरेक्टली गोज इनटू व्हाट, डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट्स, क्लियर लिया। और उसमें हमको बच्चों देखना है एक्सेप्शंस, ठीक है, रेडी बच्चों। सो एनी काइंड ऑफ हमको एडवांस मिला इन द कोर्स ऑफ और द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज नॉट अ डिपॉजिट। चेक करो कौन सा क्या क्या है, एज एन एडवांस फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ध्यान देना प्लीज पे अटेंशन, एज एन एडवांस इज अप्रोप्रिएट, मतलब क्या बच्चों, अप्रोप्रिएट मतलब क्या, एडजस्टेड, अगर करेक्ट लिया, against the supply of goods and services within a period of 365 days, मतलब क्या, what are you understanding here बच्चों, तुमको एडवांस मिला पैसे, है ना, कि तुम कुछ ना कुछ गुड्स या फिर सर्विस प्रोवाइड करने वाले थे, तो उसके लिए टाइम पीरियड देके रखा है यहाँ पे अभी, कितना, 365 डेज, बात समझी कि नहीं सभी को, ऑल ऑफ यू टेल मी, अरे बोलो हाँ, एवरीबडी, श्योर, आर यू श्योर, टेल मी एवरीबडी।
नहीं, तुम एक कंपनी हो ऑब्वियसली, लेट अस से यू प्रोवाइड, एकदम टाइम पास एग्जांपल दे रहा हूँ, यू प्रोवाइड लैपटॉप, ओके, यू आर इन द बिजनेस ऑफ लैपटॉप्स, ठीक है, तुम्हारा कस्टमर है, बहुत बड़ा ऑर्डर दिया उसने, होलसेल का, मतलब बड़ा ऑर्डर दिया उसने, और उसने तुमको एडवांस दिया, एडवांस तो यू अंडरस्टैंड ना, तो ये याद आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट में यूनिलैटरल बायलैटरल एग्जीक्यूटरी वगैरह वगैरह कुछ याद आ रहा है, तो कस्टमर ने अपना काम किया, लेट अस से उसने पूरा 100% भी पेमेंट कर दिया रहेगा पहले ही, या फिर कुछ एडवांस भेजा है, तुमको पैसा आया, ये बात पहली बात समझो, ठीक है। हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि हमको जो भी पैसा मिला हम लोग बोलते डिपॉजिट्स, देन हम उसके उसके एक्सेप्शन में कि भाई ठीक है, तुमको जो भी पैसा मिला इन द ऑर्डिनरी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, है ना, दैट इज नॉट अ डिपॉजिट, इन द ऑर्डिनरी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस तुमको जो पैसा आया है एज एडवांस, दैट इज नॉट अ डिपॉजिट। हाउएवर, क्या कह रहे हो लोग, जो भी तुमको एडवांस आया है उसके अगेंस्ट ही तुम कुछ ना कुछ गुड्स और सर्विसेज दोगे ना, अरे हाँ या ना, तो अगर तुमने एक साल के अंदर वो प्रोवाइड किया, एक साल के अंदर तुमने वो गुड्स या सर्विस दिया, तो डिपॉजिट नहीं है, करेक्ट, वेरी गुड। तो बच्चों मान लो ये जो हमारा जो भी डेट्स है, वॉट एवर डेट्स यू कैन राइट डाउन, तो एडवांस दिया जनवरी बच्चों 22 में, आया ना, और ये भाई साहब के पास मतलब लेटेस्ट साल से अप टिल दिसंबर 22 ही शुड सप्लाई, अभी जीएसटी पढ़ रही थी, मेरे दिमाग में सप्लाई आ गया, ओके एवरीबॉडी क्लियर, बात एक ही है ना, समझा, सो टिल दिसंबर 22 बच्चों सप्लाई होना चाहिए, या फिर आई विल से टिल दिसंबर 22 इट इज नॉट अ डिपॉजिट, और आफ्टर एल से दिसंबर 22 जो पैसा अपने पास पड़ा है अब बच्चों वो माना जाएगा डिपॉजिट। टेल मी क्लियर ऑल ऑफ यू, बताओ, अरे बोलो हाँ, नलायक हो, समझा कि नहीं, यस एवरीबॉडी बोलो फटाफट, हाँ या ना, क्लियर, आगे जाऊं मैं। अब इसमें भी थोड़ा सा और जुगाड़ है, और जुगाड़ है बच्चों, ओके, अक्षता ओके, अमन बेटा, इफ सच एडवांस जो पैसा आया है ना, इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग्स, लग गए बच्चों, लफड़ा हो गया, इसने बोला था I-10 प्रोसेसर चाहिए मेरे को, उसने I-7 भेज दिया, यस, या फिर देयर इज अगेन मिसमैनेजमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग, देयर इज सम डिस्प्यूट, पैसे के बारे में मैटर, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, कंपनी ने बोला था नहीं हमको ज्यादा एडवांस चाहिए, नहीं भेजा उसने, कुछ बच्चों अनशन हो गई बिटवीन बोथ द पार्टीज, कुछ प्रॉब्लम हो गया, सो नाउ दैट मनी जो भी है, जो भी ट्रांजेक्शन है, इट इज नाउ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, मतलब यहाँ पे क्लियर कट कोर्ट में चली गई ये बात, इज इट ओके। अब बात अगर बच्चों कोर्ट में चली गई है, तो ऑब्वियसली जो चल रहा था, जो भी इनके बीच का ट्रांजेक्शन फिलहाल के लिए क्या है, वो फ्रोजन है ना, मतलब इन्हें वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंजंक्शन, इंजंक्शन मतलब क्या, काइंड ऑफ स्टे ऑर्डर, है ना, स्टेटस को, कुछ और आगे करना नहीं, कस्टमर और पैसा भेजेगा नहीं, कंपनी इसको पैसा रिटर्न नहीं कर रही है, लैपटॉप भी दे नहीं रही है, एज इट इज राइट नाउ पेंडिंग फॉर कोर्ट डिसीजन, बात समझी क्या, क्योंकि दोनों में डिस्प्यूट है, इज इट ओके एवरीबॉडी। अब डिस्प्यूट है तो बच्चों डिस्प्यूट कब सॉल्व होगा ये हमको नहीं पता ना, बात समझी कि नहीं, अगर अब देखो जनवरी में एडवांस मिला, इनका ये भाई साहब ने कुछ क्या बोलते उसको सप्लाई नहीं किया रहेगा अब तक, जुलाई अगस्त तक भी, और मैटर गया बच्चों के कोर्ट में कि कंपनी ने बोला नहीं हमने ज्यादा का कोटेशन दिया था, इन्होंने लोग अग्री नहीं कर रहे हैं, कम पैसा दे रहे हैं, दिस एंड दैट, कस्टमर बोला कि नहीं नहीं इसका क्वालिटी का प्रॉब्लम है, वॉट एवर इट मे बी, इसका डिसीजन बच्चों 2023-24 में कभी भी लगेगा, बिकॉज ये तुम्हारा मैटर सेटल नहीं हो रहा है या फिर डिले होगा, तो जो पैसा अपने पास पड़ा हुआ है दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ डिपॉजिट, इवन इफ वो एडवांस की तरह मिला था, इवन इफ मुझको वो एक साल के आगे तक, एक साल तक भी मैं गुड्स या फिर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाया था, स्टिल बच्चों इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट आफ्टर 1 ईयर, बात समझी, व्हाई, बिकॉज जो मैटर था इट वाज सब्जेक्ट टू, नॉट सब्जेक्ट टू, वो तुम्हारा बच्चों लिटिगेशन में अटक गया, ओके, सो इफ सच एडवांस इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ एनी लीगल प्रोसीडिंग्स द पीरियड ऑफ 365 days इज नॉट एप्लीकेबल, इज इट ओके एवरीबॉडी, मतलब मैटर 2 साल के बाद सॉल्व हुआ तो भी हम उसको डिपॉजिट नहीं मानेंगे, हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, इज इट ओके ऑल ऑफ यू, बोलो बच्चों, क्लियर कि नहीं, इंद्रजीत, अक्षता, अमन, निधि,
बोलो निधि, एनी प्रॉब्लम? अक्षता? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलो, ये तुम्हारा था गुड्स एंड सर्विसेज, नॉर्मल वाला, ठीक है। दूसरा, एज एन एडवांस फॉर कंसिडरेशन फॉर एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर एन अग्रीमेंट प्रोवाइडेड इट इज यूज्ड फॉर सेम पर्पस। किसने किसको क्या दिया, ये तुम्हारे ऊपर एक हो गया एग्जांपल, इसको बाजू में छोड़ो। ओके एवरीबॉडी, यहाँ पे फिर से लिखते हैं अपन कस्टमर, और यहाँ पे कंपनी। यस चलिए, यहाँ पे दिया एडवांस, और बच्चों कंपनी क्या देने वाली कस्टमर को? इमूवेबल प्रॉपर्टी। अरे हाँ या ना? अब बच्चों इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या खाऊ पेड़ा थोड़ी, खाऊ पेड़ा कि अभी अभी यहाँ लेके जाओ। इसको बनने को शायद टाइम लग सकता है ना, ट्रांसफर करने के लिए टाइम लग सकता है। इज ओके एवरीबॉडी? तो यहाँ पे एज एन एडवांस फॉर कंसिडरेशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर एन अग्रीमेंट, तो उनका अग्रीमेंट हो चुका है प्रॉपर्ली कि यस दिस इमूवेबल प्रॉपर्टी विल बी ट्रांसफर्ड टू यू, और वी आर कंसिडरिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड देन विल बी ट्रांसफर्ड टू यू। यस चलिए, और जो पैसा है बच्चों, मतलब उनका क्या आगे क्या कहना है, प्रोवाइडेड दैट इट इज यूज्ड फॉर द सेम पर्पस, दिस ये जो पैसा है ये इसको ट्रांसफर करने के लिए ही दिया जा रहा है, या फिर कंपनी ले रही है टू ट्रांसफर द इमूवेबल प्रॉपर्टी, दैट मनी इज नॉट यूटिलाइज्ड फॉर एनी अदर पर्पस। यस, तो देयर बेसिकली इन योर कैन से ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसके अगेंस्ट अपने को कुछ एडवांस पैसा मिला रहेगा, दैट इज नॉट अ डिपॉजिट। तो मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर, ध्यान देना, इफ आई टॉक अबाउट ट्रेडिंग गुड्स, ट्रेडिंग गुड्स समझना, ट्रेडिंग गुड्स, ट्रेडिंग गुड्स या फिर सर्विस तुम देने वाले हो तो तुम्हारे पास 1 साल है, पर अगर तुम इमूवेबल प्रॉपर्टी बच्चों दे रहे हो तो वही टाइम लिमिट एज सच नहीं है। बात समझी? पर ये सब चीजें तुम्हारी अग्रीमेंट के अंदर आनी चाहिए। क्लियर लिया कि हाँ हम आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी प्रोवाइड करने वाले हैं। वाके टॉके बोलो हाँ बच्चों, आगे जाऊं मैं? या थर्ड, एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट वाले करते बच्चों, है ना, काट लेंगे तुम्हारा पैसा, हाँ है ना, समथिंग समथिंग दिस कॉल्ड एज रिटेंशन मनी आल्सो, रिटेंशन, ये अलग हो गया, बट ठीक है, सामने वाला काम करे, है ना, इसके उन्होंने बच्चों कुछ डिपॉजिट रखा है परफॉर्मेंस के लिए, बात समझी, और उसका परफॉर्मेंस होने के बाद हमें पैसा रिलीज कर देंगे। अंडरस्टूड और नो बच्चों? तो दिस सिक्योरिटी डिपॉजिट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ डिपॉजिट फॉर दिस चैप्टर। ओके, सिंपल ले लिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट समझा, बट ये किसके लिए है अब, ये वाला परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, है ना। तो कोई भी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर वगैरह बच्चों, तो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्टर, वो जनरली कुछ ना कुछ पैसा डिपॉजिट करते हैं बिफोर दे आर गिवन दी कॉन्ट्रैक्ट। फाइन एवरीबॉडी? ओके, आगे जाओ मैं। ऑलराइट, देन advance received under long term projects for supply of capital goods। ओके, तुम बच्चों पूरा तुम्हारा इंडस्ट्री या फिर तुम्हारा पूरा क्या बोलते हैं फैक्ट्री सेटअप करा के दे रहे हो, है, प्लांट मशीनरी बच्चों तुम लोग उसको सेटअप करा के दे रहे हो। सो एडवांस रिसीव्ड अंडर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स फॉर सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स, अगेन इसमें भी तुम्हारा कुछ टाइम पीरियड नहीं है। सो इमूवेबल प्रॉपर्टी अलग, है ना, और यहाँ पे कैपिटल गुड्स तुम्हारे बच्चों अलग। यस चलिए एवरीबॉडी, देन अरे हाँ या ना? चलो, एडवांस, ये तुम्हारे अच्छे एग्जांपल्स है। एडवांस फॉर प्रोवाइडिंग फ्यूचर सर्विसेज ऑफ वारंटी, ओके, और मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट एज पर अग्रीमेंट। हैव यू बच्चों हर्ड ऑफ एएमसी? बस में तुम्हारे बहुत दो तीन फुल फॉर्म निकलेंगे, पर नॉर्मल वाला लेटर से इज एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। यस, कभी कभी क्या होता है, तुम्हारा मान लो कोई कंप्यूटर, कोई ऑफिस है, हम कंपनी की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े लेवल की बात कर फिलहाल, तो उनके सभी कंप्यूटर्स को बच्चों साल में 1 बार 2 बार सर्विसिंग करवाना, एंटीवायरस डलवाना, ये बहुत छोटे लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं, पर पॉसिबल है, लेकिन दैट इज व्हाट एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। तुम्हारे जो एसी है, एयर कंडीशनर, उसका साल में 1 बार आना, उसका जो भी गैस वैस है उसका रिफिल करवा के जाना, क्लीनिंग करवा के जाना, ये होता है। हमारे क्लासरूम का प्रोजेक्टर है, हमारे क्लासरूम में बच्चों प्रोजेक्टर यूज होता है, उसका भी हमारा एएमसी है कि साल में 1 बार आओ, बल्ब चेंज करो, क्लीनिंग वीनिंग करो, वो सब करो, है ना बच्चों। तो ये भी होता रहता है, तो इसके लिए ये चीजों के लिए हमने पैसे एडवांस में दे के दिए, पर
कर लिया, क्योंकि फ्यूचर में सर्विस मिलने वाला है। सिमिलरली वारंटी, यू मस्ट ऑब्वियसली सीन द दिस योर, यू कैन से एग्जांपल ऑफ व्हाट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं सॉरी, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। क्या है वो? इंश्योरेंस कंपनी को, कुछ बात समझ रहे कि नहीं, इंश्योरेंस कंपनी को बच्चों पैसा तो स्टार्टिंग में ही आ गया एज अ प्रीमियम, and they may or may not have to pay the amount on the case of a contingent event. Yes, tell all of you. तो यहाँ पे जो कंपनी को एडवांस में पैसा मिल गया है उसकी बात कर रहे हैं, पर कंपनी की यहाँ पे जिम्मेदारी बन सकती है कुछ काम करने की इन फ्यूचर। क्लियर? बहुत बार बच्चों होता है कि हमने पूरा पैकेज ले लिया, बाइक का सर्विसिंग का बच्चों ऐसे होता है आजकल, तो तुम 10,000 रुपए दो, तुम्हारे 6 महीने का सर्विसिंग या फिर 1 साल का सर्विसिंग फ्री, कुछ भी रहेगा। तो बात समझिए एवरीबॉडी, ऑल ऑफ यू, क्लियर ऑल ऑफ यू? जो तुम क्या बोलते हैं, जो तुम कार वार खरीदते हो, तो कार के कोटेशन में भी ये लोग बच्चों डालते हैं 20,000 40,000 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा, बट तुम्हारे अगले 3 साल के लिए कुछ भी तुमको खर्चा पानी बिल्कुल भी नहीं। क्लियर लिया? दैट इज कॉल्ड एज फ्यूचर सर्विसेज और यू कैन से मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। आगे बढ़ो मैं, चलो। तो ये पैसा अभी आया और शायद शायद काम बच्चों कंपनी को फ्यूचर में करना पड़ेगा। ओके, दैट इज अगेन दैट मनी रिसीव्ड इज नॉट अ डिपॉजिट, प्रोवाइडेड टाइम पीरियड टू प्रोवाइड फ्यूचर सर्विसेज अर्लियर ऑफ 5 years और कॉमन बिजनेस कस्टम्स। ओके, तो कुछ कम तुम्हारा होता है ना बच्चे, फोन का वारंटी, मुझको पता लैपटॉप का वारंटी कितने का होता है, कोई नया खरीदते तो लेट से 1 साल, हाँ या ना, और कुछ हुआ है कि नहीं बच्चों को उसके लिए, और तुमने लेट से एक्सटेंड वारंटी भी लिया था, मैंने कोई पुराने लैपटॉप पर लिया था, आई थिंक 2-5 हज़ार रुपए भर के एक्स्ट्रा, मैंने 2 साल से वो वारंटी एक्सटेंड करवा लिया, पैसा मिला ना कंपनी को, समझे कि नहीं? कर लियो। पर तो यहाँ पे उनका क्या कहना है, बट मैक्सिमम कितना हो सकता है बच्चों, 5 साल। So they are saying that it is not a deposit if you have taken this money in advance, ताकि तुम उनको फ्यूचर में सर्विस प्रोवाइड कर सको, है कि नहीं? बट फ्यूचर मतलब कितना, 5 years और नो एज पर बिजनेस कस्टम्स विच एवर इज अर्लियर। ऑलरेडी लिया। अब मुझको बताओ, कॉमन सेंस है, मोबाइल का तुम लोग 10 साल करने वाले हो क्या वारंटी? बिल्कुल भी नहीं। क्लियर ऑल ऑफ यू? आगे जाओ मैं बच्चों। यस, अरे बोलो हाँ। Then advance received and as allowed by any sectoral regulator, SEBI वगैरह, IRDA, RBI कुछ भी रहेगा, और एज पर डायरेक्शंस ऑफ CGSG गवर्नमेंट वगैरह वो सब ठीक है। एंड वन मोर, एडवांस ऑफ सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स पब्लिकेशन वेदर इन प्रिंट और इन इलेक्ट्रॉनिक। तुम्हारा बच्चों सबसे बेस्ट एग्जांपल, तुम्हारा सब्सक्रिप्शन कौन सा करते हैं हम लोग बच्चों? OTT चैनल्स का करते हैं कि नहीं? OTT एडवांस ही भर के रखते हो ना, 6 महीने का पूरा बुकिंग, है कि नहीं बच्चों? एवरीबॉडी अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यहाँ पे भी देखो गुड्स और सर्विसेज का, अगर तुम्हारा फोन अगर प्रीपेड, आई डोंट नो तुम्हारा कितना पेपर है, कितना तुम्हारा है, हर कोई यूज करता है कैसे कैसे, बट अगर बच्चे तुम्हारा प्रीपेड फोन है, तो हम डे टू डे रिचार्ज करते हैं, महीने भर का रिचार्ज कर दिया, महीने भर का कर दिया, मान लो 3 महीने का कर दिया, 1 साल का कर दिया, है ना बच्चों? क्लियर है एवरीबॉडी? या तो इवन जो सर्विस तुमको मिल रहा है ना फ्यूचर में, एनीवेज, हाँ ये प्रिंट न्यूज़पेपर नहीं होता बेटा, ये तुम्हारा हो गया, हो सकता है, बट जनरली ये तुम्हारा रहेगा इसका मैगजीन्स का, मैगजीन्स का भी हो सकता है। ऐसा अभी भी बच्चों बहुत सारे बहुत लोग यूज करते हैं जर्नल्स एंड मैगजीन्स। तो तुम उसको कैसे रिटर्न कर रहे हो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। रिटर्न मतलब हाउ आर यू गिविंग दैट डेटा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि डेटा कैन बी गिवन इन इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट फॉर्म। यस चलिए ऑल ऑफ यू। इसके आगे और इम्पोर्टेंट चीज, माँ कसम, स्टार मार्क करो इसको। ओके, ये तुम्हारे इसके एग्जाम्पल समझा ना, OTT एग्जाम्पल के लिए OTT, ओके, या फिर प्रिंट के लिए फिर मैगजीन यू कैन से, ओके। तुम्हारा वो बिजनेस आउटलुक और कौन से है वो बिजनेस के तुम्हारे और अभी भी फेमस कुछ ना कुछ, ये मैगजीन्स। ओके ऑल ऑफ यू, आगे बढ़े हम लोग, चलो। एनी ऑफ द अबव अमाउंट नॉट पेड विद इन 15 days of becoming due
विल बी ट्रीटेड एज डिपॉजिट। स्टार मार्क करो। इसमें से बच्चों कोई भी पैसा जब कंपनी को रिटर्न करना है ना, ड्यू डेट है कुछ ना कुछ, एनीथिंग कि एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ना बच्चों, एनीथिंग कि कंपनी शुड रिटर्न इट, तो तुमको 15 दिन है रिटर्न करने के। अगर तुमने 15 दिन के अंदर रिटर्न नहीं किया, सेम लॉजिक जो तुमको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, शेयर एप्लीकेशन मनी के वही वाला, तुम्हारा रिफंड का टाइम खत्म हो चुका, पैसा तुम्हारे पास अटका पड़ा है, इट विल बी ट्रीटेड एज अ डिपॉजिट। बात समझी एवरीबॉडी? यस लिया। एंड पॉइंट, वन मोर पॉइंट, अमाउंट रिसीव्ड अंडर ए, बी और डी। ओके एवरीबॉडी, अच्छा पॉइंट, एकदम खतरनाक पॉइंट है, ध्यान देना। कभी इसको क्वेश्चन आया नहीं है, बट इट इज इंटरेस्टिंग पॉइंट। अमाउंट रिसीव्ड अंडर ए कौन सा था बच्चों? गुड सर्विस हम लोग देंगे। बी इमोबल प्रॉपर्टी देंगे। डी कैपिटल गुड्स देंगे। अग्री टिल ऑल ऑफ यू? समझी यहाँ तक बात बच्चों? है ना? सो ट्रेडिंग गुड्स, इमोबल प्रॉपर्टी या फिर कैपिटल गुड्स देने वाले हैं। सो अमाउंट रिसीव्ड अंडर एबीडी where company accepting the money does not have necessary permission to deal with the goods or services। बच्चों को कंपनी के एमओए में ही बच्चों गुड्स डिस्क्राइब नहीं है या फिर सर्विस डिस्क्राइब नहीं है कंपनी के एमओए में, या फिर दे डोंट हैव नेसेसरी परमिशन टू डील। मान लो यू आर डीलिंग विद फायर क्रैकर्स और ड्रग्स, ड्रग्स मतलब मेडिकल ड्रग्स और एनी अदर सच यू कैन से आइटम्स, जिसके लिए गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए, और बच्चों गवर्नमेंट का परमिशन तुम्हारे पास है ही नहीं, फिर भी तुम उसको बेच रहे हो, हाँ या ना? तो हम बच्चों यहाँ पे 1 साल, यहाँ पे तो कोई टाइम ही नहीं है बी के लिए, डी के लिए भी कोई टाइम ही नहीं है बच्चों, देयर इज नो टाइम लिमिट हियर, यस और नो, फॉर बी एंड डी इन दिस केस, अंडरस्टूड? पर जो चीज के लिए तुम्हारे पास परमिशन ही नहीं है, अगर तुमने उसके लिए बच्चे पैसा लिया है, immediately will be deemed as dividend। You don't have permission to let us say to deal in alcohol, तुम्हारे पास अल्कोहल का लाइसेंस ही नहीं है, लिकर लाइसेंस, you still बच्चों doing it, yes चलिए। So the does not have the necessary permission। बात समझे ना सभी को? Does not have the necessary permission to deal with such goods and services, कुछ भी रहेंगे, है ना? मतलब they have not obtained necessary permission। Okay everybody? From which money was taken, then will be deemed as deposit immediately। Clear all of you? अरे बोलो हाँ, ठीक है ना? क्लियर क्लियर बोलो बच्चों, आगे बढ़े हम लोग, बोलो ठीक है। अभी भी थोड़ा सा ही बचा है, कुछ खास नहीं। फिर अनसेक्योर्ड लोन फ्रॉम प्रमोटर, स्टार मार्क, 2 स्टार दो। प्रोमोटर हो, अब सॉरी अपना प्रोमोटर नहीं, डायरेक्टर हो चुका क्या? डायरेक्टर, एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम डायरेक्टर। अब इसलिए मैं तुमको बोलता था बच्चों बार बार कि प्रोमोटर का डेफिनेशन इसलिए बच्चों अच्छे से सीरियसली करो, बार बार फिर से वही मत बोलो जिससे कंपनी चालू किया, अरे वो हो गया भाई, ठीक है, ओके। बट हु इज अ प्रोमोटर बच्चों, कैन यू टेल मी? उसके 3 रूल्स थे और एक एक्सेप्शन था। पहला वाला था जिसका नाम लिखा गया है एज प्रोमोटर इन, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसका नाम लिखा गया है एज अ प्रोमोटर, जिसका नाम लिखा गया है एज प्रोमोटर वेयर, जाओ फर्स्ट चैप्टर में, आई डोंट केयर, गो बैक एंड चेक राइट नाउ, अभी के अभी चेक करो, क्या पढ़ाई करो तुम लोग। अरे नहीं बेटा, प्रोमोटर का नाम आरओएम में क्यों आएगा? आरओएम में मेंबर का नाम आता है। मैं प्रमोटर के डेफिनेशन पूछ रहा हूँ तुमको, ओके? जाओ प्रमोटर के डेफिनेशन में, जाओ जाओ जाओ, वेस्ट योर टाइम, आई डोंट केयर, गो गो गो। प्रमोटर मीन्स अ पर्सन हु इज मेंशन्ड एज अ प्रमोटर और नेम्ड एज अ प्रमोटर इन 2 डॉक्यूमेंट्स है, वेरी गुड, प्रॉस्पेक्टस एंड दूसरा वाला भी बोलो, दूसरा वाला भी लिखो, लिखो, टाइप करो, नलायक को करो, करेक्ट, एनुअल रिटर्न। ये कौन याद रखेगा? मैं याद रखूंगा, तुमको तुमको एग्जाम देनी है ना, ठीक है। सेकंड, कंट्रोल्स ऑफिस ऑफ द कंपनी, but because of or by virtue of shareholder, director or any other purpose, yes clear, control the office of the company। तीसरा, a person according to whom, whose direction the BODs are accustomed to act। ये किसको याद रखना है? तुमको या मुझको बच्चे? यार तुमको ना, है कि नहीं? So person according to whose direction the BODs are accustomed to act, understood? And उसमें तुम्हारा एक एक्सेप्शन था, तुम्हारा ये given in the capacity of a professional, है ना बच्चों?
ठीक है यहाँ तक ऑल ऑफ यू, है ना? आगे बढ़े हम लोग बच्चों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है एवरीबॉडी। सो अनसेक्योर्ड लोन फ्रॉम प्रमोटर, ठीक है। सो बाय वे ऑफ अनसेक्योर्ड लोन इन परसुएंस ऑफ, इन पर्सन मतलब बिकॉज ऑफ, ओके। हम यहाँ पे एक्सेप्शन डाल रहे कि नहीं डाल रहे? हम एक्सेप्शन डाल रहे कि भाई अगर प्रोमोटर ने कंपनी को ही लोन दिया तो वो लोन डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। हमने बच्चों तो कौन कौन एक्सेप्शन देखे? बैंकिंग से लाता तो चलता है, और तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन है ना, फिर डायरेक्टर से लिया तो भी चलता, बस डिक्लेरेशन चाहिए। प्रमोटर डायरेक्टर नहीं है ना, प्रमोटर बट प्रमोटर है ना, बट प्रमोटर इज नॉट ऑलवेज अ डायरेक्टर, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, है ना। प्रमोटर से लिया बच्चों तो भी फिर तुम्हारा क्या है, डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। बट बस ध्यान देना, बाय वे ऑफ एन अनसेक्योर्ड लोन, किसने किसको क्या दिया? प्रमोटर ने कंपनी को अनसेक्योर्ड लोन दिया। इज ओके एवरीबॉडी? आई होप यू आर ओके विद ऑल ऑफ दिस। अनसेक्योर्ड लोन दिया, ठीक है, ये भी ठीक है। बट इन पर्सन मतलब बिकॉज ऑफ द स्टिपुलेशन, स्टिपुलेशन मतलब क्या, कंडीशन ऑफ द लेंडिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। माँ की क्या किरकिरी, चेक करो। मतलब बैंक है यहाँ पे बच्चे, बैंक एक लोन दे रही है, हाँ या ना? पर बैंक ने क्या बोला, ये लोन में हिस्सेदारी कौन करेगा? हम अकेले रिस्क नहीं उठाएंगे, प्रमोटर भी ये लोन का एक हिस्सेदार बनेगा। एज ए लेंडर, एज अ लेंडर तो तुम्हारा खुद का इन्वेस्ट करो, फिर दिखाओ ना। जैसे बच्चों होम लोन में होता है, होम लोन में तुमको 80-85% अप्रूवल मिलता है, हाँ या ना? तो बाकी का कौन डालेगा? खुद डालेंगे ना। तो यहाँ पे भी कंपनी के वही बोल रहे, तुम भी तो डालो पैसा, हम बाकी का डालेंगे। तुम्हारा जो भी प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट का फाइल 1 करोड़ का, 10 करोड़ का, तो उसमें तुम भी डालो, इन्वेस्ट करो, और फिर हम बाकी का हम लोग डालेंगे। क्लियर लियो? तो प्रमोटर ने बच्चों कंपनी को अनसेक्योर्ड, अभी लोन्स बैंक से तो लोन मिला, दैट इज बच्चों, दैट इज नॉट अ डिपॉजिट। बैंक से जो लोन मिला दैट इज नॉट अ डिपॉजिट, बट प्रमोटर से जो लोन मिला है अनसेक्योर्ड लोन, इट विल नॉट बी अ डिपॉजिट। बिकॉज अब इसमें तुम्हारा पूरा स्टोरी, क्या स्टोरी, कि प्रमोटर ने बच्चों कंपनी को लोन क्यों दिया? बिकॉज बैंक ने बोला था इसलिए। ओके, सो अंडरस्टैंड, प्लीज अंडरस्टैंड। सो स्टिपुलेशन मतलब कंडीशन ऑफ एनी लेंडिंग, जो दे रहा है पैसा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अ बैंक, कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड। लोन इज ब्रॉट मतलब कंपनी ने लिया, ड्यू टू कंडीशन इम्पोज्ड मतलब वो उसने प्रमोटर से लिया लोन, बिकॉज कंडीशन बच्चों डाला किसने? बैंक ने, ऑन प्रोमोटर्स टू कंट्रीब्यूट सच फाइनेंस। इज ओके एवरीबॉडी? दूसरा, लोन इज प्रोवाइडेड बाय प्रोमोटर्स और फिर रिलेटिव्स या फिर उनके या फिर बोथ, इज आल्सो ओके। पॉइंट नंबर सी, सच एग्जाम्पशन मतलब डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। Such exemption is available only till the loan of FI or bank is repaid, not after that। हमें बैंक का काम हो गया और उन्होंने इसको पेमेंट नहीं किया, बैंक को रिपे कर दिया और इसको पेमेंट नहीं किया तो भी चलेगा, बट स्टिल बच्चों नॉट अ डिपॉजिट। बैंक का अपना रिस्क खत्म हो गया, बैंक का बच्चों पैसा मिल गया, तो ये डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, हाँ या ना एवरीबॉडी? अरे हाँ या ना? Therefore, once bank is repaid and promoter still not repaid, कुछ बात समझी? Then promoter's loan is a deposit or is not a deposit? बोलो। इज अ डिपॉजिट, लिखो नलायको, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने उसको बोल्ड किया। जहां जहां मेरे टेक्स्ट बुक में बोल्ड है मतलब क्वेश्चन आया था, लिखो। पूरा स्टोरी है बच्चों, है ना, कहानी है ये पॉइंट क्लियर हो, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। निधि कंपनी किसके लिए होता है बच्चों? मेंबर्स से ही पैसा लिया, मेंबर्स को ही लोन दिया, अपने 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 लोगों के बीच की कंपनी। ओके, एवरीवन विल कंट्रीब्यूट एंड बच्चों अपने लोगों को लोन दिया जाएगा, करेक्ट? तो वो भी तुम्हारा डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। ओके, अमाउंट एक्सेप्टेड बाय द निधि कंपनी, बिकॉज वो अपने मेंबर्स से ही लेते हैं बच्चों पैसा। चिट फंड, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय सब्सक्रिप्शन फॉर अ चिट एज पर चिट फंड एक्ट, वो भी तुम्हारा बच्चों पैसे लेने का ही स्कीम है।
मतलब अपने लोगों से पैसा लो। अमाउंट रिसीव्ड अंडर कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स की, तो ये सब छोड़िए, तीनों तुम्हारा मतलब बस नाम याद रखो, वो उनके अंदर का जो स्टोरी है उसमें हमको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट वन फिर से स्टार मार्क। रेडी बच्चों? स्टार्टअप। अब ये जो तुम्हारा कंसेप्ट है स्टार्टअप का, पहले देयर इज समथिंग कॉल्ड योर DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड प्लानिंग, कुछ तो है वो। ठीक है, उसमें को जाने की जरूरत नहीं है। अगर उन्होंने अप्रूव किया है कि तुम स्टार्टअप हो हमारे लिए, है ना, मतलब उनका इन इट इज अ रिकग्निशन, है ना, तो तुम स्टार्टअप कहलाओगे बच्चों कंपनी एक्ट में भी, है ना एवरीबॉडी। तो उसने तुमको बताया नहीं बताया कि तुम स्टार्टअप हो, उसको हमको लेना देना नहीं है। हमको क्वेश्चन में बताया जाएगा कि दिस इज अ प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी। ओके एवरीबॉडी। अब प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी में तुमको याद आ रहा है क्या? ऑलरेडी देयर वाज सम एक्सेप्शन अबाउट, कौन सा एक्सेप्शन बच्चों मिलता है स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी को? अब तक कुछ सिलेबस में किया अपन ने, व्हाट एक्सेप्शन और कैसे एग्जेम्पशन, ऐसा कौन सा बच्चों एग्जेम्पशन मिलता है स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी को काम धंधे में? अच्छा लेट मी गिव यू, अभी क्या स्टार्टेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ फिर रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या एग्जामेशन मिलता है बच्चों, मिलता है कि नहीं, अभी तुमको यही तुमको पूछना पड़ेगा। डायरेक्ट FSC नहीं, अरे पागल हो गया क्या इंसान तू? FSC नहीं, बर्बाद करके छोड़ देगा तुम उसको। अरे स्टार्टअप है, लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम 5 साल नहीं बना सकता। नहीं बना सकता। 5 साल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना तो भी चलता है। किधर पढ़ा भाई तूने ऐसा? FS नहीं बना है। अब FS का सेक्शन पूछूंगा तुमको, FS का सेक्शन पूछूं, कौन सा सेक्शन है FS का? हाँ, 129 सेक्शन है FS का, हाँ या ना? उसमें किधर तुमको ऐसा एक्सेप्शन दिया कि FS स्टार्टअप FS नहीं बनेगा? कुछ भी यार, कुछ भी। जाओ FS के डेफिनेशन में, फिर से चैप्टर 1 में जाओ, चेक करो। चैप्टर 1 में FS के डेफिनेशन में जाओ। अब सही बोले हैं, सही पकड़े हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट का बच्चों एग्जाम्पशन है। FS पागल बिगल हो गया क्या? कोई कंपनी को FS का एग्जाम्पशन नहीं है। हाँ, और 5 साल 5 साल कहाँ से लाया तूने ये सब? ओके एवरीबॉडी, FS जरूरी नहीं है फॉर, ये कर चुके हैं हम लोग बच्चों। आई एम गिविंग यू टाइम आल्सो टू रिफर टू फर्स्ट चैप्टर, है ना, फर्स्ट चैप्टर में जाओ और देखो वहां पे FS के डेफिनेशन में है। क्लियर ऑल ऑफ यू? पक्का आगे जाऊं मैं? आगे बढ़ते, ठीक है एवरीबॉडी। आगे जाए हम लोग। अब ध्यान है, कितना पैसा बच्चों को मिला कंपनी को, ध्यान दो यहाँ पे। 25 lakhs और मोर रिसीव्ड बाय स्टार्टअप कंपनी। 25 lakhs और मोर। हम लोग एक्सेप्शन टू डिपॉजिट की बात करें, 20 लाख मिला तो डिपॉजिट, ठीक है, 20 lakhs बच्चों मिला तो डिपॉजिट। सो 25 lakhs और मोर रिसीव्ड बाय स्टार्टअप कंपनी बाय वे ऑफ अ कन्वर्टेबल नोट। अब कन्वर्टेबल मतलब क्या? कन्वर्टेबल एक तो इनटू इक्विटी, या फिर बच्चों उसको डिवेंचर या फिर लोन ही माना जाएगा। ओके, वो ऑप्शन है तुम्हारा, कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी और रीपेबल विद इन अ पीरियड ऑफ बट नॉट मोर देन 10 years। मतलब वो जो तुम्हारे पास ऑप्शन है बच्चों, तो ऑप्शन 10 साल के लिए ही है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ओके, सो कन्वर्टेबल एज व्हाट, इक्विटी, और रीपेबल एज लोन। ओके, बट विद इन अ पीरियड ऑफ 10 years इन अ सिंगल ट्रांच। ट्रांच मतलब बच्चों इंस्टॉलमेंट। ओके, लमसम, करेक्ट, मतलब एक सिंगल अमाउंट में तुमको दे दिया पूरा का पूरा फ्रॉम अ पर्सन। ठीक है एवरीबॉडी, तो 10 साल प्लीज याद रखना। अगर 12 साल के बाद बच्चों कन्वर्टेबल है तो, 15 साल के बाद कन्वर्टेबल है तो इट इज अ डिपॉजिट। यस, हाँ, गुड, ठीक है। व्हाट इज द कन्वर्टेबल नोट, उसमें हमें फिलहाल जाने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ता है। और इसे तुम्हारा और 2-4 नाम उन्होंने ऐड कर दिए हैं। एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, डोमेस्टिक वेंचर कैपिटल फंड्स,
इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, REIT पता रहेगा शायद तुमको, आया रहेगा 2-3 बार, कंपनी एक्ट में भी आया, इनकम टैक्स में भी आता है बच्चों, है ना। म्यूचुअल फंड रजिस्टर्ड सेबी, है कि नहीं। यस चलिए, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम, है ना, इन लोगों से, इनके पास पैसा ही पैसा बच्चों, इनके पास तो फंड्स ही फंड्स है, बड़े बड़े फंड्स। ओके, इन सबको बच्चों हम लोग क्या, इनसे जो पैसा मिलेगा हमको इसको कुछ मानना नहीं है एज डिपॉजिट। डन ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ू मैं, चलो। हु कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, तो ये तुम्हारा 73 और 76 तुम्हारा बार बार आएगा। 73 बच्चों, वो कंपनी जो भी 72 में देखेंगे बच्चों, दैट कंपनी कैन टेक ओनली फ्रॉम मेंबर्स, है ना। तो कौन, प्राइवेट को अलाउड है तो पब्लिक को भी अलाउड है बच्चों मेंबर से लेने का, करेक्ट लिया। बट 76 में तुम्हारा क्या आएगा कि हम बाहर वालों से भी ले, है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके लिए वी विल कॉल इट एज अ एलिजिबल कंपनी, कि यस ओनली एलिजिबल कंपनी बच्चों कैन टेक डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक आल्सो। अग्री डिलीवर ऑल ऑफ यू, और बोलो हाँ, ठीक है। सो इट इज पब्लिक कंपनी हैविंग नेट वर्थ नॉट लेस देन 100 करोड़। चेक करो क्या क्या तुम्हारे बच्चों, पब्लिक कंपनी तो रहनी चाहिए, कॉमन सेंस, हम पब्लिक के पास ऑफर कर रहे हैं डिपॉजिट्स का, पब्लिक कंपनी। ओके, हैविंग नेट वर्थ ऑफ नॉट लेस देन, सो नेट वर्थ बच्चों तुम्हारा कम से कम 100 करोड़, इज एवरीबॉडी। या फिर टर्नओवर बच्चों नॉट लेस देन 500 करोड़। अरे मैंने तुमको कभी नहीं कॉमन सेंस बताया रहेगा, ऑब्वियसली बच्चों तुम्हारा टर्नओवर बहुत ज्यादा रहेगा कंपेयर टू नेट वर्थ। यस चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले तुमको, यहाँ पे पहली बार तुमको लिमिटेशन कुछ ना कुछ आ रहा है कि हाँ ये अमाउंट के ऊपर कुछ रहेगा तो ये, वो अमाउंट के नीचे कुछ रहेगा तो वो। ओके एवरीबॉडी, ठीक है, आगे जाऊं मैं, ऑल ऑफ यू, गुड। आगे, obtained prior consent by SR in general meeting, filed the resolution with ROC before making an invitation to public within 30 days। जैसे तुमने पास किया तो पास के बच्चों within 30 days to intimate the ROC, वो एज सेक्शन 76 में आ जाएगा अपना, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन, इसको स्टार मार्क करो, डायरेक्टली सिलेबस में है नहीं बट क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग, है ना। एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज सफिशिएंट, ओके, इफ एन एलिजिबल कंपनी, कौन सा वाला, बड़ा कंपनी ना 76 वाला, is accepting बच्चों deposits within the limits given in 181C। कभी कभी तुमको बच्चे से क्वेश्चन आता है कि अगर लिमिट्स के 181C के लिमिट्स के अंदर कर रहे हैं, लिमिट्स के अंदर, तो हमारा OR से काम हो जाएगा। ओके, तो उनको SR पास करवाने की जरूरत नहीं है। यस ऑल ऑफ यू, आगे बढ़े हम लोग, एवरीबॉडी, ठीक है ना। क्या करना है, लेना है आगे और फिर अभी के लिए इतना ही करते हैं, अगली बार हम लोग अगले लेक्चर में जाएंगे। तब तक बच्चों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, पक्के से इट गिव्स यू मोर मोटिवेशन टू गिव यू मोर कंटेंट। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय एवरीबॉडी।